So Nirban, you have to just mention the correct thing and I will be moderating this session, and other student also has to participate, guys, because without your participation, there are many issues in this compilation, though it is 90% up to the mark, but sometime Krishna's question and some that blind lady's question and some other question has a problem. So rest of the questions are fine. So Anirban, you can start now. I am moderating this. Question number 1. So the PDF that I have got It's more or less the same. first I have added few things. So this is the same thing because I need to make a correction. So keep okay. adding or deleting something and I will doing it over here. The first question is what is Mattavarni according to Natya Shastra? So it's basically the fourth option, side corridors to the stage. There are two small square position front of the stage, um, which is used to display the romantic sequence, basically. Mattavarni. It's Okay. not dance floor, it's not orchestra piece, it's not green room. Living truthfully under imaginary circumstances. Living truthfully under imaginary circumstances as a quote, the answer is Sanford Meisner. Because in his book on acting, this quote is there. He mentioned it. What is Okay. acting? Acting is basically living truthfully under So imaginary guys, circumstances. also correct the question. Okay. This is not just switching off your mobile and go to evening walk. Okay. This is not a class. You have come here voluntarily to exactly figure it out whether your answer was correct or not, but only possible when you participate. Whenever I'm asking the correction, please do participate. Otherwise, this class has no meaning. Okay. Yeah. For question number 3, two main fundamental styles of classical dance according to Natya Shastra. Lasya and Tandava, Abhinaya and Nritya, and two other options are What missing. were the other two options? Guys, do you remember? Anybody remember other options? Sir, I guess one of the options mentioned Natya Nitra. I don't remember the other option, but it Natya? mentioned Natya Nitra, Nritya. It was Natya Nitra and Bhav भाव Nitra. मित्र हाँ भाव मित्र And other was? No, it was with Natya Nitra only. Natya Nitra and Bhav And Nitra. Bhav Nritya. Natya and Bhava. Okay. Then we got 3. What is the fourth? I think it's Lay and Geet. Laya and? Geet. Geet. Okay. So what is the correct answer? It's Lasya and Tandava. Okay. Sir, for the previous question, the other option that was given was Stanislavski. Which question you are saying? Number The 2. last question, question 2, Number 2. yes. Living truthfully. Living truthfully, the last option was? Stanislavski. Okay. Great. So we are done with the 3 questions. Now question number 4. Okay. So basically for question number 4, it's Sir, one of the options were Grotowski. Question number 4. Question number 4 is? One of the options was Grotowski. Jerzy Grotowski. Yeah, Grotowski. Okay. And what else was the 4th option? Samuel Beckett. Samuel Beckett. Huh. Okay. So, yeah. so it is So for a fourth option, Wolfram Dunks effect, it's essentially Brecht. We have discussed it in detail in the class. perfect. Perfect. Question number 5. Magic if. Again, very basic question. The answer is Konstantin Stanislavski. Guys, please confirm the question also because sometimes people have just fabricated and so if I am just added something from you people only, so you have to confirm the question. Okay. Question number Yeah, 6. like if the question at all was not there or the options are not genuine or something. Please point out here. Question number 6. Which of the following are not a type of Abhinaya according to Natya Shastra? The answer is Marmik because the first 4 is we already discussed. But Angik, already, Vachika, Hariya, Satvik. but there were 4 options. So one of them was not there. Bachik was not there. Vachika was not there. No. Okay.
But Marmik was there, right? Because it's Yes, sir. asking for the odd Yes, one. yes. Yes, Marmik was. sir. It was Yeah. It was Marmik was there. Marmik, Marmik it is the was odd one out. Satvik, Yeah. Angik, and Aharya, and then Marmik. Marmik is Perfect. the odd Perfect. Fine, fine, fine. Perfect. Marmik is the odd one. Yeah. Perfect. So Marvik is not actually a part of it. Okay. Living truthfully under imaginary circumstances given by whom? This is done, sir. This is done? Yes, sir. What's the second No, this question? is getting repeated Second in the one. question paper. So do you have any idea like it has come again in some other ways? No, Your no. exam? Other way, it's not like that. I have gone through all these questions, so don't worry about that. So this thing is, we already have covered this thing, living truthfully under imaginary Yes, circumstances. yes. Okay. So fine, no problem. Number 8. Number Which 7. Marathi actor titled as Shringar Samrat is famous for playing female characters? Bal Gandharva, because the famous Nat Samrat movie is already being made on it, and it's Okay, all and about that was the other, this Raja Paltu, or what exactly was the name of there? Anybody remember? सर मे बी राजा पणजी राज ऐसा कुछ तो भी था. Someone starting with Nana was also there, probably. Which one? Starting with? Nana, N-A-N-A. Something, Okay, I'm not sure. no problem. Anyway, correct answer is Bal Gandharv, as simple as that. Okay, so question number 8. Choose which one is correct in context of Kabuki, a traditional Japanese art. Alternatives are only female role. basically started with females, but the correct answer is number 2. All roles are performed by men, even the female, and they are called onagata. Okay. That is the correct one. Sir, fourth option was inspired from William Shakespeare's play. No connection. No, I'm saying the fourth No, whatsoever. the option. option is saying what was given in the examination. Yeah, What was the fourth option? something was like it's inspired from William Shakespeare's play. Guys, is it correct? Fourth option was Yes, there sir. or not? Yes, sir, it was there. Yes, sir. It was Something there. on the similar lines. More or less similar thing, but it is fine. So question number 9 we are at. Number 10. No, 9. It is 9 because we have to recorrect that. One was repeat. Oh, okay, yes. Match the following. Match the following. The thing जो लिखा है PDF में, it's already matched. So Grotowski is Which poor one is theater. odd one out? Grotowski was with poor theater. Breath with epic theater. Absurd theater का क्या है? Saptarashmi is straight play. Correct. I don't know. Absurd theater के साथ कौन सा ऑप्शन था आपके पास? Eslin. हाँ जी? Eslin, E-S-S-L-I-N. E-S-S? हाँ, L-I-N. जो वहां पर एग्जाम में था वो बोलिएगा, जो एक्चुअल है वो मत बोलिए. एब्सर्ड थिएटर के साथ क्या दे रखा था वहां पे? Sir, it was not odd one out. It was match the following. So we सर have to match the options. मार्टिन एस्लिन था सर. Okay. ये मैच्ड ही है सर. मैच है, ठीक है. तो Yes, मैच करना yes, था, अलग अलग दे रखा था वहां पे, उसको मैच करना था आगे पीछे करके. तो उसमें ए बी इज करेक्ट और सी इज करेक्ट. तो मतलब क्या आंसर क्या था उसका? सर उसमें ऑप्शंस थे कि 1 का C, 2 का A, ऐसे करके उसमें ऑप्शंस थे. ओके डन. ठीक है. But did you guys get it right? The 9 question you have discussed so far. Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. So just a moment. Question number 10. Sir, is the- 10 question number 10 में psychological gesture option था ही नहीं. था नहीं इसके अंदर, तो ठीक है. Sir, it was a similar terminology. I mean, psychological gesture को ही other words में लिखा था, but वो यही mean कर रहा था. साइकोलॉजिकल टाइप कुछ था मतलब. ठीक है. और क्या क्या ऑप्शन थे बोलिए? एक तो One physical. Improvisation. One was external to internal. Yes, external embodiment of internal. External to internal. What else? And one was imagination over emotional, something on that line. Imagination over
Emotional, something like that. And एक तो fourth option was what? improvisation था, Improvisation was there. improvisation के ऊपर था fourth option. Improvisation भी था. हाँ जी, तो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? Emotion. अनिर्बान? Yes, imagination over emotion. Okay, C. perfect. बट अगर साइकोलॉजिकल जेस्चर ऑप्शन में होता तो वो करेक्ट आंसर होता. यू आर श्योर साइकोलॉजिकल जेस्चर वाज नॉट देयर? सर क्लियर कट नहीं लिखा था सर साइकोलॉजिकल जेस्चर. एक्चुअली सर इसमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करने का था सर. हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दो ऑप्शन जो सेलेक्ट करना था, वो दो ऑप्शन कौन कौन से हैं इसके अंदर, वही क्वेश्चन है मेरा. सर इसमें एक ऑप्शन और था जिसमें ये था ना कि पास्ट लाइफ से वो कैरेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें था. अगर कैरेक्टर के पास्ट लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा था. क्योंकि अनिर्बान, उसमें ऑप्शन जो है ना, A and B इज करेक्ट, B and C इज करेक्ट, D and C इज करेक्ट, ऐसे ऑप्शन भी हैं इसके अंदर. तो ऐसा नहीं है कि एक ही करेक्ट होगा इसके अंदर, दो भी करेक्ट. हियर सर, दिस इज द UGC नेट पैटर्न क्वेश्चन. So वो they तो ठीक है. basically have multiple correct answers, but Correct, in the after multiple answers they give option like 1 2 3 4 where they put up multiple short answers like 1 and 2 correct, 1 2 3 correct, all of So them there was guys, please pay attention and tell us, was there a psychological gesture was there or not? सर जेस्चर करके था सर, एक मैंने जो पढ़ा था. Sir, it was on the lines of something like external gesture leading to something like that. ऐसे था, psychological gesture mention नहीं था. As in physical gesture leads to something on those lines. Yes sir, yes. Yeah, I think सर जो ऑप्शन बी है उसी को इस तरीके से फ्रेम किया था कि वो साइकोलॉजिकल जेस्चर को पोर्ट्रे कर रहा था. एंड अनदर ऑप्शन वाज, आई थिंक वन गाय मेंशन्ड समथिंग अबाउट पास्ट लाइफ और समथिंग, तो वो कुछ वैसा कुछ करके था. पास्ट लाइफ वाला आंसर चेकऑफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है. जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है और जो इमेजिनेशन ओवर इमोशन है, ये दोनों पॉइंट चेकऑफ के साथ कनेक्टेड है. तो वो जिस भी ऑर्डर में और जहां भी होगा, साइकोलॉजिकल टाइप का जो था, साइकोलॉजिकल क्या रहा होगा? कोई आइडिया किसी को, किसी बच्चे को कोई थोड़ा आइडिया हो साइकोलॉजिकल क्या था? सर मे बी समथिंग लाइक एक्सटर्नल जेस्चर्स क्रिएट्स इंटरनल साइकोलॉजी या कुछ ऐसा कुछ होगा, बट नॉट श्योर. देखो एक्सटर्नल इंटरनल लिखा हुआ है यहाँ पर. Yes, I think that's the closest what you mentioned, external gestures to internal what did you just say? I mean to say ये दोनों ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे. साइकोलॉजिकल जेस्चर को उन्होंने एक्सटर्नल टू इंटरनल के वे में लिखा था कि एक्सटर्नल जेस्चर्स creates internal psychology, ऐसा कुछ करके उन्होंने मेंशन किया. External gesture leads to internal psychology. Yes sir, I think बोलो क्या बोला अनिर्बान? बोलो दोबारा एक बार. एक्सटर्नल gestures gesture leads to internal psychology or something like that. हाँ, इंटरनल साइकोलॉजी या इमोशंस ऐसे ही कुछ था सर. इंटरनल साइकोलॉजी होगा, इमोशनल नहीं होगा. इंटरनल है तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो शायद इमोशनल मेमोरी था, if I'm not wrong. हाँ, I think इमोशनल मेमोरी या पास्ट से रिलेटेड ऐसे कुछ था. दो करेक्ट आंसर हो गए. एक्सटर्नल जेस्चर लीड्स टू इंटरनल साइकोलॉजिकल एंड इमेजिनेशन ओवर इमोशन. करेक्ट? ठीक है जी. तो दो वाले भी हैं इसमें, वो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि लोगों ने वहां ऑप्शन में दे रखा है A B D C. वो मैं उसको ऑर्डर को नहीं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि याद भी नहीं रहता है A B है या B A है. तो वो पॉइंट कौन से थे वो याद रहने दिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. चलिए, इन वॉइस ट्रेनिंग why an ideal balance is required in pitch, pace and pause. These are also multiple correct answer question. क्या क्या हो सकता है इसमें? You are sure these are the exact options are there? Correct. Option यही थे. Yes sir. Options ये पर as far as I remember उसके अंदर इसके अंदर आंसर एक ही था. हाँ सर, एक ही आंसर था. Not multiple answer. Just one. Then the correct answer is B, for clarity and rhythm. Clarity and rhythm.
ठीक है. Question number, we are going to question number 12 now. From which Shakespeare play has been taken the world stage? This is essentially As You Like It. No other options are right here. Anji? As You Like It. This is the correct answer. वन है ये. ठीक है, 12वां हो गया. अभी क्वेश्चन नंबर 13वां था जो है, ये मीनिंग ऑफ सबटेक्स्ट का एक क्वेश्चन था. उसमें क्या क्या अल्टरनेटिव्स थे? सर इसमें एक ऑप्शन था सर कि सबटेक्स्ट को आप लाउड तरीके से बता सकते हैं, ऐसा कुछ तो भी लिखा था. यूजिंग लाउड वर्ड्स, ऐसा कुछ तो भी था लिखा हुआ. सर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि सबटेक्स्ट कैसे कोई एक्टर दिखाता है कि वो सबटेक्स्ट पोर्ट्रे कर रहा है, तो उसका एक ऑप्शन जो वो कह रहे हैं वो यही था कि वेट, लेट्स फॉर्मुलेट द क्वेश्चन करेक्टली. व्हाट वाज द क्वेश्चन? it was on the lines of कि how does an actor portray the subtext? Portray the subtext. ठीक है जी. अब Yes. अल्टरनेटिव क्या थे इसके? इसका एक था speaking dialogues clearly and loudly. एक मिनट सर एक और ऑप्शन था मल्टीपल एक मिनट लिख लूं मैं पहले बेटा, भूल जाऊंगा मैं. स्पीकिंग Dialogues clearly and loudly. दूसरा क्या था? सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी अदर्स कैन हेल्प. शायद देखो यहाँ पे कोई केस नहीं चल रहा है, कोई तुम्हें कोई फांसी नहीं लगा देगा. मे बी तुम कुछ अपने ऐसा कुछ था दिमाग सर से कि बोलो, मल्टीपल तो रिहर्सल्स कोई प्रॉब्लम से नहीं. रिलेटेड, मल्टीपल प्रैक्टिसेस या रिहर्सल्स से मल्टीपल प्रैक्टिसेस का भी था कुछ. मल्टीपल रिहर्सल. सर रिहर्सल डाल दीजिए. मल्टीपल रिहर्सल्स. मल्टीपल रिहर्सल्स हो गया. तीसरा और एक सर था कि कुछ साइलेंस से रिलेटेड था कि कीपिंग इन साइलेंस एक्सप्रेशन था सर, ऐसा करके था. साइलेंट था और माइक्रो It एक्सप्रेशन was ऐसा कुछ तो भी था. हाँ, it was silence and minimum facial expressions. हाँ, सटल एक्सप्रेशन. एग्जैक्टली. हाँ, सटल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है. और और एक बोलिए. था और सर एक था रैपिड मूवमेंट्स को लेके भी था एक, कि मतलब हाँ, आप not- अपने not जो doing कर any रहे हैं body उसको movements. ड्रामेटिक बनाए. हाँ, नहीं, ये किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन था. इसका ये था maybe नॉट डूइंग एनी बॉडी मूवमेंट्स, आई गेस. हाँ ओके या ओके नॉट डूइंग एनी बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी करेक्ट. मूवमेंट्स. नहीं सर, एक्चुअली ये वाला जो ऑप्शन है वो दूसरे क्वेश्चन के लिए था. चलो छोड़ देते हैं, यहाँ वाला हटा देते हैं. तो इसमें सबटेक्स्ट में और क्या, एक ही करेक्ट आंसर था या दो चार दे रखे थे उन लोगों ने? एक ही आंसर था करेक्ट. ओनली वन सर. This is the silence and सर minimum इसमें facial जो expression. करेक्ट ऑप्शन था वो ऐसा था कि स्पीकिंग डायलॉग्स विद सर्टेन इमोशन जो कि कॉन्ट्राडिक्टिंग हो डायलॉग से. चौथा क्या? देखो अभी हमने 3 ऑप्शन डाली हुई हैं इसके अंदर. स्पीकिंग डायलॉग क्लियरली एंड लाउडली. ठीक है जी. एक तो ये था अल्टरनेटिव. दूसरा अल्टरनेटिव ये था मल्टीपल रिहर्सल्स. तीसरा ये है साइलेंस एंड मिनिमम फेशियल एक्सप्रेशंस. अब फोर्थ पता लगेगा तो एक करेक्ट कौन सा था वो हम बता पाएंगे. सर आई गेस Hello? समवन जस्ट सेड इट कि हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला सर था. कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन वाज वाला दैट. था सर. कॉन्ट्राडिक्टरी. हाँ, हाँ portraying मतलब ऐसा कुछ था सर emotions. कि एक्शंस कॉन्ट्राडिक्टिंग द इमोशंस से ऐसा कुछ करके था. इमोशंस कॉन्ट्राडिक्टरी टू एक्शंस. इमोशंस हाँ. ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी. कुछ था. इमोशंस कॉन्ट्राडिक्टिंग टू इमोशंस कॉन्ट्राडिक्टिंग टू Actions. एक्शंस. हाँ जी. अनिर्बान क्या करेक्ट होना चाहिए इसमें आपके हिसाब से? एक आंसर करेक्ट होगा. Number 3 is the correct answer. नंबर 3 साइलेंस एंड मिनिमम फेशियल एक्सप्रेशन. सर साइलेंस एंड मिनिमम एक्सप्रेशन में और कुछ एडेड था सर, लाइक कोई बात नहीं, बट ये साइलेंस एंड मिनिमम तो था ना उसके अंदर. उसके अंदर था सर. रफली यही था सर, ऐसा ही था. रफली यही था, लेकिन उसमें ये भी था कि डायलॉग पोर्ट्रे करना एंड बीच बीच में आई मूवमेंट्स देना, साइलेंस मेंटेन करना और जब टाइम मिले वो तब एक्सप्रेशन देना. बेटा तो ये इतना लंबा चौड़ा तूने जो ब्रह्म ज्ञान बोल दिया है इसको सर इतना ही बड़ा था words सर, में 2 बोलो. लाइन का था. 2 लाइन का था 2 वो? लाइन. हाँ यस सर. सर चलो बोलो भाई. अब लोग 2 लाइन का वो बोल रहा है, 2 लाइन का था तो बोलो क्या होगा. सर शायद चौथा ऑप्शन ये था इसमें कि एक्टर जैसे बोलता है वो सबटाइटल से मैच होता है, ऐसा कुछ था मेरे को जितना याद आ रहा है.
सर फोर्थ ऑप्शन ये था कि लिटरली वही लाइंस वो बोल दे हाँ जो हाँ टेक्स्ट में लिखी हुई है। लिटरली वही लाइंस बोल दे। हाँ हाँ सर, ये लाइंस का ही फोर्थ था कि ऑप्शन। जो लाइंस हाँ है वो रट के बोल दो बस। हाँ वही था सर। तो सर इसमें एक्चुअली अभी वो आप वो दो आई सिमिलर थिंक काइंड ऑफ वेगली क्वेश्चंस फर्स्ट थे। ऑप्शन है। देखिए, एक्चुअली दो सिमिलर काइंड ऑफ डायलॉग क्वेश्चंस थे, क्लियरली इसलिए एंड लाउडली, पहला सुन लो, इज इट करेक्ट, दिस मच इज करेक्ट, और देयर वाज अ लॉन्ग थिंग, पहला पहला ऑप्शन बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट जो व्हाट वी हैव आपने रिटन, इट वाज yes लाइक what दैट, क्लियर ओनली। yes ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मल्टीपल रिहर्सल्स का था वहां पे ऑप्शन। मल्टीपल रिहर्सल्स माइट बी, जो अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि स्पीकिंग डायलॉग्स एग्जैक्टली एज दे आर रिटन। मल्टीपल रिहर्सल स्पीकिंग डायलॉग्स एज रिटन, यस ठीक है जी, ये हो गया। और साइलेंस एंड मिनिमम फेशियल एक्सप्रेशन हो गया तीसरा ऑप्शन। यस और चौथा हो गया इमोशंस कॉन्ट्रडिक्टिंग टू एक एक्शन। ऑप्शन ये भी था, डायलॉग पॉज और नुआंस के साथ बोले। वो पॉज एंड नुआंस वाला ये थर्ड का बोल रहा हूँ मैं। वो सर पॉज और साइलेंस और नुआंस जो मिनिमम हाँ आया था। देखो दूसरा यहाँ ऑप्शन पे एक नुआंस था। साइलेंस वर्ड वाला भी था क्वेश्चन आ शायद। रहा है, हाँ अभी रुक जाओ रुक जाओ। देखो कंफ्यूज मत हो जाओ, साइलेंस का भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। तो साइलेंस इज स्टिलनेस, स्टिलनेस इज मस्ट, व्हाट दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज, ये क्वेश्चन में भी हो सकता है वो, तो इसको इससे मर्ज मत करो। अभी आ और रहा है सर नहीं द फिफ्थ नहीं सर, मर्ज नहीं हो रहा है सर, इसका यही बता रहे हैं सर, यही है कि क्या? डायलॉग बोलते वक्त पॉजेस लेना, आई आई मूवमेंट करना एंड फेशियल एक्सप्रेशन देना, ये वाला क्वेश्चन था सर, ये तो वाला ये वाला साइलेंस ऑप्शन वाला था। जो है, इसी का लंबा सेंटेंस था, और दो सेंटेंस यस बोल दो यस तो। यस सर, यस सर। चलो बोलो क्या सेंटेंस होना चाहिए। सर while saying the dialogue an धीरे actor धीरे धीरे must धीरे धीरे धीरे, वाइल while saying the dialogue an act डायलॉग an actor must एक्टर मस्ट take pauses, टेक पॉजेस, eye movements, comma, उसके बाद eye movements है सर, मूवमेंट, कॉमा, and uh, and facial expressions. नहीं, फेशियल एंड माइक्रो एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी सटल आई बॉस, गेस हो चुका है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, सटल Micro सटल kind एक्सप्रेशंस। of Facial yeah, expressions. there was माइक्रो a word माइक्रो इट वाज। expression. माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशन। Yes sir. ओके, तो करेक्ट आंसर ये आपके, बट इसका अल्टरनेटिव एक ही दे रखा था, एबीसीडी टाइप। Yes Yes, sir, sir. एक ही था सर। सर एक ही तो था। तो अनिर्बान, आपके हिसाब से लग रहा है ये सी वाला जो लंबा चौड़ा सेंटेंस है यही होना चाहिए। Sir, हाँ जी, this is the correct answer. Dialogue actor must take pause, eye movement, and all this. ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये लंबे सेंटेंस वाला करेक्ट आंसर हो गया। जिन्होंने लंबा सेंटेंस लिखा है वो अपनी झोली में 2 मार्क्स डाल लो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो 2.5 माइनस में चले जाओ। Sir, I think the fourth option was framed in a way which also felt like it was referring to the subtext, which is not being conveyed in this fourth option correctly. But other people might say क्या something on दोबारा that. बोलो, फोर्थ ऑप्शन क्या था आपके I हिसाब don't, से? I don't really recall that, but चलो कोई वही बात नहीं, बहुत जो भी apparent था, लग रहा था। अभी अभी क्लियर ये हो गया कि इसके अंदर एक ही अल्टरनेटिव था और लंबा चौड़ा 2 सेंटेंस का कोई एक अल्टरनेटिव भी था। तो वो अल्टरनेटिव केवल यही बन रहा है जो सब लोग एग्री हो रहे हैं, Okay. तीसरे वाला। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। अब ये स्टिलनेस वाले में आ जाइए, जो कंफ्यूजन चल रहा है थोड़ा सा, वो स्टिलनेस में क्लियर हो जाएगा। सर स्टिलनेस, क्वेश्चन था ये, वो है कि इन हाउ डज एन एक्टर शो इनर कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा वाला, फोर्थ का? ये 15th क्वेश्चन। स्टिलनेस इज मस्ट, व्हाट स्टेटमेंट इंप्लाइज। सर आई थिंक आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन करेक्टली। द बोलो। क्वेश्चन वाज कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है और उसके अराउंड बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो उसको कुछ तो बोल रहे हैं, ठीक है, बट ही इज द हार्ट ऑफ द सीन। जो सेंट्रल कैरेक्टर चुपचाप खड़ा है, ही इज द हार्ट ऑफ द सीन। हाँ हाँ हाँ, तो हाउ डज ही रिएक्ट टू एवरीथिंग? ही इज सेंटर टू टेंशन, ऐसा कुछ तो भी यस लिखा था। सेंटर टू यस टेंशन, सेंटर टू करेक्ट। द यस सर, यस तो सर, वो यस सर, ये स्टिलनेस का क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है जैसा लिख दिया गया है यहाँ पे लोगों ने, वहां पे भी वो इंटरेक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन आपके हिसाब से क्या बन रहा था, थोड़ा बोलो जरा अंदाजे से। सर कोई एक कैरेक्टर था, कैरेक्टर एक्स करके मान लेते हैं। ही इज वन द ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर कैरेक्टर। बेटा जो इज नॉट अंग्रेजी जिसकी स्पीकिंग। ठीक है, पहले हिंदी वाला आदमी बोल ले उसको, फिर दूसरा आदमी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलो मेरे को। ठीक हिंदी है वाला सर। आदमी बोलो।
हिंदी में क्या था बेटा, बोलो। सर ऐसा था कि ग्रुप ऑफ फैक्टर्स में एक Actually, सेंट्रल कैरेक्टर है। चलो अब अंग्रेजी वाला आदमी बोल दो। One of it the is a group characters, scene, and one of the characters one is of the not characters speaking, of the but the play is tension is One towards person, silent. let the him. lady speak first. Gentlemen, wait. हाँ जी, बोलिए। There is a group scene, and the one person is not speaking, but the tension is towards him. So this is the question. So दूसरे वाला why आदमी is बोलो, it दूसरा सेकंड And आदमी। it was One also of the mentioned that he's characters of the central. play is अभी ऑप्शन को silent, भूल जाइए, ऑप्शन को भूल जाइए, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्लीज but ट्राई he टू is अंडरस्टैंड, centered to the फॉरगेट द tension. क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? स्पीक द क्वेश्चन, आई विल राइट इट डाउन। One of the characters of the play is silent, is One not of the speaking, wait. One of the character of the play is not speaking. is not speaking in a group scene? is not speaking in a group scene, But okay, he is centered to tension. but he is Center to tension. center to tension। center कैसे बन सकता है करेक्ट? कोई बात नहीं, चलो बोलो। center to सर नहीं वो attention, लिखा था center to सर। ही इज अ tension। सेंटर So ऑफ basically, टेंशन the लिखा हुआ था, question is मतलब whatever is going on in the scene, he is the center of that tension. He is हाँ the main हाँ character of the scene. attention or tension? No, सर sir, it नहीं was टेंशन टेंशन ही लिखा था था, सर, टेंशन नहीं टेंशन था ही वहाँ थी। पे। Tension. ही था। Tension. सिर्फ Center वो of the टू के tension। जगह ऑफ होगा सर। हाँ जी, Sir, central to dramatic tension. It was okay, written there. Central ड्रामेटिक character. to और central सर to बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे थे कि वो फिर कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब किस बेटा वो बात की तरीके बात से हो वो रही है, शो पहले करेगा। क्वेश्चन की बात हो रही है। क्वेश्चन तो फॉर्मुलेट कर ले हम पहले। हाँ यही क्वेश्चन था सर कि वो कैसे मतलब अपने साइलेंस से वो कैसे इस चीज यार को तुम दो शो सेंटेंस करेगा। अंग्रेजी के नहीं बोल पा रहे हो जिंदगी में। व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू एफटीआई, यू विल बी टॉकिंग टू द फ्रेंच, जर्मन, इटालियन पीपल ओवर देयर। बोनजोर। It is shocking. सर ही इज सेंट्रल Shocking टू to द me. ड्रामेटिक I टेंशन। also come from a government school. Please, those people who have not learned Hindi, if you fail to do anything in your life, one of the major reason would be that you could not express yourself in English. Despite the fact we are working in a Hindi speaking industry, but high time all these people who are from government schools kindly wake up, pull your socks up. Nothing is going to happen in your life otherwise. I don't behave like this, but you people are not able to construct two sentences, simple two sentences, where simple words are there. And just day before yesterday, the exam is over. Just yesterday. I understand remembering 30 things are tricky and difficult, and particularly when the options are close to each other. But at least question is clear, only then you will be able to figure out the answers, na? So what I have understood is one of the character of the play is not speaking in the group scene, but he is centered to the dramatic tension. Okay, let's assume this is a question. Sir, Anybody has a better option to say it? Say it yes, now. sir. Sir, it has one more part. How will the character react? How will the character react? Yes, sir. Wonderful. Okay, so now let's get to the options. It's So more what were like the what does the character implicit the most, I guess. no among the various option, or in the question you are saying? No, the question I'm saying. What you are saying in the question was? something related to empathy. What does the character implicit the most? Something like that. What does what does the character implicit? Okay. What does the character implicit? Okay. So now if this was a kind of a question, so what were the options now? No distraction by physical movement, was something like that was there? सर इसमें सर एक ऑप्शन था कि वो एक्टिवली लिसन कर रहा है और थोड़ा सा मिनिमल एक्सप्रेशन दे रहा है, एक्सप्रेशन या फिर जेस्चर कर रहा है। One option which I clearly remember was active listening and minimum facial expressions. हाँ Facial हाँ हाँ था या ये नहीं था पता नहीं, पर minimum expressions था.
मिनिमम हाँ ये एक्सप्रेशन पूरा का ही तो था। अभी पढ़ो, ये जो लिखे हुए हैं इसमें, नो डिस्ट्रैक्शन बाय फिजिकल मूवमेंट, ऐसा कुछ था कुछ? नहीं सर। मुझे Next याद step. नहीं आ रहा It was there, It sir. is No active distraction by नहीं आ it रहा was सर। there sir. It was It there. was there, Was sir. there. Yes, yes, Yes. No distraction by physical movement was there, so this is yes, sir. done. It was there. Okay, so one is confirmed. B. Yes. The option was something like active listening with subtle facial expressions. Okay, active listening with facial, Subtle facial expressions. with subtle facial expression. Okay, and what was the third option now? There are a couple of things are there. एक One ऑप्शन option ये had था इसमें कि वो way अपने in डायलॉग between. आने तक रुकेगा या नहीं। हाँ जी, एक इसमें ये था सर ऑप्शन कि वो अपने डायलॉग तक चुप रहेगा, जब इसका डायलॉग आएगा तब बोलेगा वो, ये इस तरह का एक ऑप्शन था Yeah, सर। he is correct, sir. एक ऑप्शन ये भी था कि वो अपने डायलॉग आने तक का इंतजार करेगा और फिर वो अपने डायलॉग्स बोल देगा, बस उतना ही मतलब। so he will He- wait for He his he turn was from His waiting for turn his of line, ऐसा कुछ तो भी dialogues था or सर। something like that. He'll wait Waiting for his for the turn of line। dialogues. हाँ waiting for the dialogue. Waiting for his turn of dialogues ऐसे कुछ करके था सर। Waiting for his turn of dialogue. हाँ, turn to deliver dialogues, सर I guess. इसका आई थिंक जो ऑप्शन था वो था he should wait for his turn to deliver the dialogue. Okay, he should wait Wait for his turn to deliver the for dialogue. his turn to ये deliver ऐसा the भी dialogue. था, he is reacting as if he is listening, hearing the dialogues for the first time. दोबारा Sir, बोलिए yes, एक बार। exactly. Fourth option यही था कि क्या था फोर्थ ऑप्शन? He is He's going reacting to like he is listening the dialogues for the first time. yes. He is listening to the dialogue for the first time. Sir, he's reacting as He if is listening to the reacting like dialogues for as the if first he time. is yeah. दोबारा बोलिए एक बार। He is He is reacting as reacting if he is listening to the dialogues for the first time. He is reacting as if He is listening to the dialogues for the first time. dialogue for the first time. ठीक है जी, तो ये बाकी का अब उड़ा रहे हैं हम धीरे धीरे। An Sir, increase emotional sir, the D option that you have mentioned was also there in the paper. कौन सा? यहाँ पर इनर कैरेक्टर नॉट ऑलवेज रिवील्ड Yeah, बाय, yeah, yeah. It was there, sir. तो फिर ज्यादा हो गया हमारे पास ऊपर से। सर चालीस- एक No, एक I think क्वेश्चन था पेपर में जिसमें इट वाज रिलेटेड टू हाउ शुड अ पर्सन पोर्ट्रे इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा क्वेश्चन था। ये जो डी इनर ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। शिफ्ट सिनिकल टू एक्टिविज्म इन कैरेक्टर इज कॉल्ड। एक तो ये है यहाँ पर, एक रिदम टेम्पो का क्वेश्चन है, और ये माइकल ब्लाइंड लड़की है वो वाला एक अलग क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अभी हम पहले इसको सेट कर लें कहीं पे, ये जो 15 वाला है। चलो इसमें से 4 ऑप्शन में रहने देता हूं, ऐसा ही कोई घुसुड़ मुचुड़ टाइप का और कोई क्वेश्चन होगा तो वो यहां से उठा के हम उसको देख लेंगे। सर सेकंड पार्ट में 2 क्वेश्चंस है सर उसमें कंपलसरी। एक तो क्या बोलते हैं, being in stillness always gives a dramatic tension। ये जो बी आपका ऑप्शन है, इंक्रीज ड्रामेटिक टेंशन फॉर द ऑडियंस Yes. करके लिखा हुआ है यहाँ यस पर। दिस वाज देयर सर। इसी क्वेश्चन में था ये। यस अदर पीपल And- एग्री गाइस? सर एक्चुअली आई थिंक That was a सर याद different नहीं आ रहा। question. एक मिनट, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, सर मुझे एक चीज बोलनी है। बोलिए। पेपर में आई थिंक 3 ऐसे क्वेश्चंस थे बिफोर द पैसेज भाई क्वेश्चंस रुक जा, मेरी क्लास इसी चल रही लाइन है पर अभी और थे। मेरा डॉक्यूमेंट भी वो साथ में चल रहा ऐसा है। तो एक तो ये है, ठीक है जी। यस मैं और कह रहा हूँ एक मेरी क्लास बिहेविंग चल रही है, कल के एग्जाम वाली है, बिहेविंग डॉक्यूमेंट भी साथ में चल रहा है। बिहेविंग ये हो गया है सर। ये ऊपर का हो गया है? अंडर हाँ ये हो गया। इमेजिनरी माइजनल भाई का मैं ही भी था। तो काम मेट का हूँ। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। हाँ सेकंड क्वेश्चन सर ही था ये। इमेजिनरी पता है सर्कमस्टांसेस भाई, कर रहा हूँ। नो बिहेविंग नहीं सर, आई ट्रूथफुली गेस दिस वाज सर। वन ऑफ द क्वेश्चन टू। गिवन सर सर्कमस्टांसेस है ये। अंडर सर इमेजिनरी आई वुड वांट टू से हाँ समथिंग। बोलिए। मैं एक सेकंड में एक बात बोलना चाहती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ये जो 16th वाला क्वेश्चन है ये आप क्या ऑलरेडी ये द व्हाइट लोटस ओपन हटाने की कह रहे हो क्या? हाँ जी 16 बोलिए। सर जो 16th क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस। तो Then इसकी how do you want to जगह पे open the film? इसकी जगह पे एक How do you क्वेश्चन want to आएगा open the film? समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ हाउ डज अ कैरेक्टर शो इनर कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू शो इनर कॉन्फ्लिक्ट।
ऐसा क्वेश्चन था एक जिसके मिनट, एक ऑप्शन मिनट. नहीं ऊपर What लिखा हुआ is इन द स्पिरिट ऑफ व्हाइट लोटस। Sir, I what guess is this the question was also. तो उसको best कुछ तो way ओपन तो है of ना, वो ब्रिंगिंग इट अलाइव से शोइंग पहले का इनर विजुअल सीक्वेंस कॉन्फ्लिक्ट? तो है ना, वो इट्स अ मोंटाज inner राइट। conflict? इसके अंदर जो इंट्रो एज वो बी डायलॉग की पहले बताई लिखे हुए कि हैं बैक ऑप्शन चैनिंग क्या होती है। ऊपर वाले बेटा क्वेश्चन आपस में डिस्कस तो मत उसको करो, जो ऐसा भी करके जिसको बोल दूं डिस्कस कि करना है वो मेरे साथ डिस्कस करो, मोंटाज कुछ क्योंकि तो मैं करके लिखूंगा, सेटिंग अप द स्टोरी। मैं आई थिंक लिखूंगा का आपस माइक में। ऑन है। वहां पे विक्रांत पूरा उसको विक्रांत डिस्कस कर लिया है। विक्रांत नाम का एक लड़का है, फिर वो स्टोरी टेलिंग माइक ऑफ एलिमेंट नहीं में किया सीधा है। ब्रिंगिंग इट अलाइव से शुरू करूं। बेटा विक्रांत रतनपाल, मैं बाहर कर दूं तुझे यहाँ से? I'm muting him. Just a second. Who is it? Vikrant? हाँ बेटा यहाँ पे कई सीरियस चीजों का डिस्कशन चल रहा है। एक क्वेश्चन का मतलब है 2.5 मार्क्स, और तुम्हारी खोपड़ी में भी ये बात नहीं घुस रही है कि तुम लोग पहले सिस्टम में ही बाहर हो जाओगे, सेकंड स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाओगे तुम लोग। वहां जो भसूड़ी चल रही है वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा अभी जिंदगी में। फालतू के अड़ंगों में फंसे हो तुम लोग। यहाँ पे मेरे को कंट्रीब्यूट करो। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर so that you will come to know where do you stand. Don't switch on your mic unnecessarily by disturbing everybody here. It's a very serious thing going on. Okay, so let's first finish this thing. One of the character of the play is not speaking. Please switch off your audio until unless you are speaking. When you speak, you switch it on. Okay, when you speak, you switch it on and behave like a little educated people. Okay, guys, one of the character of the play is not speaking in a group, but he is central to the dramatic tension. What does the character implicit? Okay, no distraction by physical movement, active listening with subtle facial expression. He should wait for his turn to deliver dialogue. He is reacting as if he is listening to the dialogue for the first time. ये चार ऑप्शन हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं. Is everybody more or less agree? These were the options. Yes. Can I say something? हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? समथिंग वाले लोग, What do you want to? सर ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग अभी भी ठीक नहीं है। पहले एक स्टेटमेंट थी स्टिलनेस से रिलेटेड, उसके बाद ये पूरा था डिस्क्रिप्शन की वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज नॉट स्पीकिंग। सर बट द समरी इज सेम ऑलमोस्ट, समराइज करके वो क्वेश्चन ऐसे ही था, वो एक आध दो सेंटेंस ज्यादा भी होगा तो मीनिंग उसका बट वो यही था। स्टिलनेस वाला क्वेश्चन अलग था, तो उसके नीचे चार मैंने ऑप्शन यहाँ लिखी हुई हैं स्टिलनेस वाले क्वेश्चन की, मैंने हटाई नहीं है अभी या तक। देयर वाज 3 क्वेश्चन सर जिनका थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी था ऑप्शंस में, इसलिए शायद सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बट व्हेन वी विल कम टू दैट क्वेश्चन वी विल फिगर इट आउट। बड़े वो क्वेश्चन कब के लिए आएगा? वर्ड टू वर्ड याद करना मुश्किल होगा, आप जितना याद कर सकते हैं सो दैट द देखो इनर कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर ऑफ द क्वेश्चन वी कैन कैच, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अभी इस क्वेश्चन को पहले सेट कर लेते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज नॉट स्पीकिंग इन ए ग्रुप सीन बट ही इज सेंट्रल टू द ड्रामेटिक टेंशन। व्हाट डज द कैरेक्टर इम्प्लिसिट? पहला ऑप्शन, नो डिस्ट्रक्शन बाय फिजिकल मूवमेंट, ऐसा कुछ था उसमें ऑप्शन? यस सर, चारों ऑप्शन अपन ने सही फिगर आउट कर लिए हैं ऑलमोस्ट, तो वी कैन चारों डू ठीक है दी। हमारे। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें करेक्ट कौन सा है? सर जी सर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आई डोंट नो आई एम आल्सो राइट और नॉट, बट जो हमारा थर्ड आंसर है, फोर्थ आंसर है, दिस ही शुड वेट ऑफ हिज टर्न, वो और फोर्थ ऑप्शन, ये दोनों मिलाकर एक ही ऑप्शन था, अब मुझे जहां तक याद आ रहा है। नहीं it was just नहीं, No. These are different, अलग अलग थे। It was separate. चलो ठीक है, एक मिनट, अभी हम सब लोग कॉमन सेंस लगाते हैं। जो हमने लिखा है ही शुड वेट फॉर हिज टर्न टू डिलीवर डायलॉग, और ऑप्शन नंबर 4 है ही इज रिएक्टिंग एज इफ लिसनिंग टू द डायलॉग फॉर द फर्स्ट टाइम। दोनों अलग अलग बातें हैं, एक जैसी नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अनिर्बान, अगर ये चार ऑप्शन करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? मुझे अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से 2 और 4 सही लग रहे हैं आपके हिसाब से? अच्छा, इसमें मल्टीपल थे भाई, इतना बताओ कोई आदमी? नो सर, नहीं सर, नहीं सर, No, सिंगल sir. था। नो सर, सिंगल ऑप्शन है सर। सर, सारे ऑप्शन ऑप्शन है तो क्या होना चाहिए? थोड़ा अभी कंसंट्रेट करते हैं 2 और 4 में। एक्टिव लिसनिंग विद सटल फेशियल एक्सप्रेशन, ही इज रिएक्टिंग एज इफ ही इज लिसनिंग टू द डायलॉग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर 2 और 4 में भी एक है तो 4 होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वेरी सब्जेक्टिव सेटिंग है और एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको नहीं पता है। सर आई विल टेल वन थिंग सर, बोलिए। ये क्वेश्चन में स्टिलनेस वर्ड था सर,
जैसे one of the Yes, character sir. of the play is not Correct, sir, speaking नहीं था. One of the character in the play is in stillness. Is not speaking in the group scene, is in character of the Stillness. play is Stillness. Stillness. Yes, sir. Is Correct, in sir. stillness. And I remember, Sir, one option I'm was very there sure that, कि you know, sir, stillness आपने always. जो, one second, let me speak, brother. So, इसमें ये था सर कि आपने जो दो ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन ए टू इंक्रीज द ड्रामेटिक टेंशन, एंड ऑप्शन ये ई आपने जो पहले से लिखा था, pause is required to convey the emotion. कन्वे द, ये दो ये ऑप्शंस जो आपने लिखे हैं वो आए थे सर उसमें कंपलसरी, इतना मैं गारंटी दे क्वेश्चन ये सकता है हूँ. कि आए थे तो थे, बट वो क्या इस क्वेश्चन के अंदर आए हैं, ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर ही आए हैं सर, इस तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से अंदर ही कौन आए. कौन से हो गए? आपके हिसाब से कौन सा हुआ? इंक्रीज द ड्रामेटिक टेंशन था सर, जो आपने इसमें लिखा है इन इंक्रीज्ड इमोशन टेंशन बोल करके. ठीक है. हाँ, आपने बी में लिखा है सर. यस यस यस. इंक्रीज ड्रामेटिक टेंशन फॉर द ऑडियंस हो गया. और दूसरा कौन सा है? यस. एक और है कि पॉज रिक्वायर्ड टू कन्वे द इमोशन. यस, पॉज इज रिक्वायर्ड नहीं था सर. आई थिंक ये ऐसा था, पॉज विल ऑलवेज कन्वे द इमोशन. Pause always conveys the emotion. No. Sir, It was sir, central character stillness silent है always यहाँ पे, conveys the तो emotion. It was Yes. stillness always convey the emotion. Yes, stillness yes. always convey the emotion. Stillness always convey the emotion. तो ये भी इसी का ऑप्शन था, आप बता रहे हैं? बिल्कुल सही सर. यस सर, ये था ही सर. And So, sir, D वाला भी था. I I have ticked it. And सर D1 was मुझे also there. सेकंड वाला भी D1. लग रहा है सर, बिल्कुल था, एक्टिवली लिसनिंग विद सबटल फेशियल एक्सप्रेशंस. Sir, can I say something? अभी हम इस सर क्वेश्चन को क्यों ना हम इस क्वेश्चन को और एक और आगे चल के शायद एक और सिमिलर क्वेश्चन आएगा उसको चलो बाद चलो में चलो कंबाइन चलो करें. अभी चलो छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं. यस What is एग्जैक्टली the best way of showing inner conflict? ऐसा था कोई क्वेश्चन? What is the best way of showing inner conflict? ऐसा कोई क्वेश्चन था? सर नॉट सो श्योर, सॉरी. Not sure, sir. नॉट श्योर. चलो हटाते हैं इसको फिलहाल. चलिए ये क्वेश्चन को अभी फिलहाल काट लेते हैं हम लोग. सर कैन आई से वन थिंग? बोलिए. जो पिछले क्वेश्चन में जो ये बोल रहे थे ना, जो बी वाला जो ऑप्शन है और ई वाला ऑप्शन जो है, डी वाला ऑप्शन है, वो जो मैंने आपको 16th क्वेश्चन बनाया ये उसके ऑप्शंस थे. 16 क्वेश्चन कौन सा है? ये हाँ, सिनिकल. ये नहीं सर, इससे पहले वाला जो सब कह रहे हैं ये कुछ था ही नहीं. व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ शोइंग इनर कॉन्फ्लिक्ट? ये थोड़ा बड़ा आंसर था, थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर क्वेश्चन, बट व्हाट द क्वेश्चन मेंट वाज दिस ओनली. यस. और उसके ऑप्शंस थे कि टू मच मूवमेंट टू शो इनर कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसे ऑप्शंस थे उसके. तो चलो इसमें ये माइनर वाइजर नाम तो नहीं लिखा था ना उसमें? ये नहीं सब सर. नहीं सर. No, सर मैं ये समझता हूँ सर, ये दोनों क्वेश्चंस 15th and 16th बोथ आर सेम सर. Conflict word was also used. Yes. सर दैट्स Conflict व्हाई आई वुड word. सजेस्ट कि हम इसको एंड में डिस्कस कर लें क्योंकि हाँ ये सर, दोनों ये क्वेश्चन एंड में बहुत डिस्कस कर कंफ्यूजिंग लेते है. सर. छोड़ देते हैं. यहाँ पे 17 पे आ जाओ. ए शिफ्ट फ्रॉम सिनिकल टू एक्टिविज्म इन ए कैरेक्टर इज कॉल्ड. सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ब्रोकन स्ट्रक्चर था सर, स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं था, ब्रोकन स्ट्रक्चर लिखा था. Yes, sir. ब्रोकन स्ट्रक्चर लिखा था सर. ब्रोकन स्ट्रक्चर. ब्रोकन स्ट्रक्चर. आगे Second option was character transformation. Third option was character arc. Wait guys. ब्रोकन स्ट्रक्चर के आगे क्या था? सर बस इतना ही Just था. that. जो बस आप इतना ही था सेकंड सर. ऑप्शन, यस एग्जैक्टली, एंड जो सेकंड ऑप्शन है उसको आप दो में ब्रेक कर दीजिए, वो सेकंड एंड थर्ड बन जाएगा. नहीं, ये कैरेक्टर आर्क भी था ऑप्शन कोई? वो Yes. नीचे आप पे ये लिखा अलग हुआ से है. था सर, अलग से था कैरेक्टर सर. आर्क सर सेकंड ऑप्शन है सर, कैरेक्टर आर्क. सेकंड ऑप्शन हो गया. थर्ड क्या था? यही सर कैरेक्टर Character ट्रांसफॉर्मेशन. transformation. ठीक है, आप फोर्थ बोल दो जल्दी से. Static beat. स्टैटिक बीट्स या बी एंड सर इसमें Yes. इसमें दो Now ऑप्शन there were करेक्ट थे. multiple. Yes. ये 2 3 करेक्ट थे Two इसमें. or three probably. हाँ, या जी. तो दो या तीन.
इसमें 2 3 कैरेक्टर मल्टीपल आर्क थे एंड कैरेक्टर इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन हाँ सर मल्टीपल बेसिकली ए एंड सी था सर, बी मल्टीपल एंड सी ऑप्शन था, है। और देखो ए एंड डी था ABCD को सर। भूल जाओ ए बेटा, बी ABCD सी EFGH को भूल डी जाओ। था। क्वेश्चन क्या है कि One, इसके अंदर दो, अभी दो एक से ज्यादा अल्टरनेटिव वाले थे ना सर इसके अंदर। मिनिमम हाँ दो सर, yes, एक ऑप्शंस से ज्यादा करेक्ट है थे और सर। मैक्सिमम एक 3 पे ऑप्शंस तो करेक्ट है। और अभी एक सब पे लोग तो दो साइलेंट हो और जाओ, तीन। अब सब लोग साइलेंट हो जाओ। अनिर्बान, ये क्वेश्चन हमने अल्टरनेटिव करेक्ट ढूंढ लिए हैं, अब इसमें से हमें चूज करना है, 2 थे या 3 थे। हाँ, इसमें जो बेसिकली 2 करेक्ट आंसर है वो है कैरेक्टर आर्क और कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। सिनिकल टू एक्टिविज्म के शिफ्ट को बेसिकली कैरेक्टर आर्क और कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन ही कहा जाता है। ठीक है, हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। सर इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ऐसे थे, एक में थे कि 2 and 3, एक में थे 1 2 and 3। बेटा उनको छोड़ दो आप, अभी वो ना तो आपको याद है ना किसी और। आपने पेपर वहां उतारा तो नहीं है ना बैठ के? अगर आपने पेपर उतारा हो तो आप बोल सकते हो, और ऑर्डर भी वैसा होना चाहिए। ABCD की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। सर नो हम नो यहाँ ये तक नहीं, सही है। 2 and पूरी बात 3 यहाँ पे तो जो दिया सुनो गया है वही बोल रहा हूँ सर। बेटा, 2 पूरी and 3 बात सुन कैरेक्टर लो, आर्क एंड पूरी बात सुन लो। अभी मान लो मैं ABCD लिखता ही नहीं, 1 2 3 4 5 लिखता ही नहीं, मैं 0 0 कर देता हूं, ठीक है? अब मुझे बोलो, तुम क्या बोलोगे? हाँ अब मैं 0 बोलूंगा है, सर। अभी बोलो 0 0 है, अब बोलो क्या हाँ क्या है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑप्शन में था कि कैरेक्टर आर्क एंड कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, और एक ऑप्शन में था कैरेक्टर आर्क, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्रोकन स्ट्रक्चर। अब देखो, मैंने 4 ऑप्शन लिखी हुई है, 5 ऑप्शन तो वहां नहीं दी गई थी, ठीक है? अब मुझे केवल 4 ऑप्शन बताओ क्या थी। अभी ABCD वही 1 2 3 4 को छोड़ो, सर अब बोलो ये ऑप्शन कुछ क्या है। और कहना चाह रहा है एक्चुअली। ही इज सर ट्राइंग टू वो से कि ऑप्शंस अपन ने बता 2 रहा है ऑप्शंस सर। करेक्ट ढूंढ लिए हैं। ही इज ओनली आस्किंग दैट ब्रोकन स्ट्रक्चर तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक और ऑप्शन था जिसमें along with character arc and character transformation broken structure was also यस given। यस वो ये पूछ रहा है कि देखिए cause देखिए, अभी सुन लो, काफी लोगों अभी ने आप वो वाला लोग ऑप्शन आप भी लोग टिक किया सुनो, है। आप लोग सुनो, आप लोग सुनो मेरी बात को। वहां पे 4 ऑप्शन दे रखी थी, जो चाहे वो ABCD थी या 1 2 3 4 थी, ठीक है? 4 ही ऑप्शन थी ना। तो मुझे यहां पर पहले 4 ऑप्शन का नाम बताओ। पहले मेरे मेरे तरीके से चलो, 4 ऑप्शन का नाम बताओ। ब्रोकन स्ट्रक्चर एक ऑप्शन था, एवरीबॉडी हाँ एग्रीज? यस हाँ सर। सर। दूसरा सर ऑप्शन ब्रोकन कैरेक्टर, वेट वेट, दूसरा ऑप्शन कैरेक्टर आर्क नाम का वर्ड था, केवल एक ऑप्शन, यस सर। हाँ सर था सर। ठीक है? अब तीसरी ऑप्शन पे आ जाओ, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन केवल वर्ड था या उसमें लंबा चौड़ा सेंटेंस था? नहीं सर, इतना ही था सर। सर उसमें ठीक है, कैरेक्टर सर ट्रांसफॉर्मेशन के आगे भी कुछ था और ब्रोकन स्ट्रक्चर के भी आगे कुछ था, और कंफर्म सर नहीं है, याद नहीं नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। नो नहीं सर, सर, नो सर। ब्रोकन स्ट्रक्चर सिर्फ नो सर, उतना ही ऐसा था कुछ सर, नहीं था, ब्रोकन यही था। स्ट्रक्चर लिख के। ठीक है, ब्रोकन स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, ब्रोकन स्ट्रक्चर था। कैरेक्टर आर्क में भी कैरेक्टर आर्क ही था। सर कैरेक्टर चारों ऑप्शन ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन था, और स्टैटिक बीट में स्टैटिक बीट था। तो हाँ सर। अब एग्जैक्टली। अनिर्बान, आपके हिसाब से कैरेक्टर आर्क और कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाना चाहिए हमारे लिए करेक्ट आंसर। ये दो जो ऑप्शंस हैं, ये दोनों की दोनों करेक्ट है। यस यस। पर नॉर्मली सर मैं एक बात बताना चाहूंगा जी कि नॉर्मली जी, जब ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऑप्शन के साथ कंप्लीट होता है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि ए एन बी ए एन सी ए बी सी, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, ऐसे जब होते हैं तो अगर कोई भी ऑप्शन में कैरेक्टर आर्क और कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर सिंगल आउट ऑप्शन थे, लाइक बी एंड सी करके थे, तो वही सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है। और अगर बी और सी के देखो साथ ये सब कोई लोग ये और बोल ऑप्शन, रहे हैं कि ये सारे वर्ड अलग अलग थे, कंबाइन नहीं थे। नहीं अभी सर फिर प्लीज कोई सर, सर नहीं सर कंबाइंड ही थे। सर 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 वो सेइंग, ऑप्शन कंबाइंड ऐसे नहीं दिए थे थे सर, वो सर वही कि बोल रहे हैं सर सर, प्लीज ए या कंबाइंड कंटिन्यू, बी यू है आर या गोइंग बी इन द या राइट सी है डायरेक्शन। या ए सी डी है, ऐसा करके बेटा दिया वो था सर। हाँ मैं आपको, ABCD को भूल जाओ दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं तुम लोगों की खोपड़ी में वो बात नहीं घुस रही है। सर समझ गए तुम हम लोग, No, समझ no, गए sir. ABCD समझ को भूल Anirban जाओ। sir गए। had understood it correctly. Anirban sir was going in the right direction. यस तुम सर, लोग अनिर्बल सर तुम आप लोग सही बोल रहे हैं। तुम लोग मेरी बात को सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। तुम लोग 60 साल की उम्र हो गई है मुझे, 18 साल से यही सर फोड़ रहा हूं मैं, मेरी बात को सुनो। वहां पर ABCD 1 2 3 4 को छोड़ दो, ठीक है? अब मुझे जो 4 ऑप्शन वहां लिखी हुई थी वो बताओ बस। क्या वहां ब्रोकन स्ट्रक्चर नाम की अकेली ऑप्शन थी, हाँ या ना? हाँ सर। यस यस सर। सर। ठीक है, ओके वेट। कैरेक्टर आर्क नाम की सिंगल ऑप्शन थी, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की सिंगल ऑप्शन थी, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। फोर्थ, स्टैटिक बीट की सिंगल ऑप्शन थी, हाँ या ना? हाँ सर।
बस, तो अब इसका आंसर हो गया। अगर मैं इसको बोलता हूं ए, ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूं बी, ठीक है जी, अगर मैं इसको बोलता हूं सी, और इसको मैं बोलता हूं डी, तो यहां पर मैं मल्टीपल ऑप्शन बना सकता हूं, ए प्लस डी, बी प्लस सी, फलाना डिमका, और इसका करेक्ट आंसर हो गया बी प्लस सी। बस अभी मुझे बहस नहीं करनी है, केवल अनिर्बान ये कंफर्म कर दो, ये बी प्लस सी वाला करेक्ट है कि नहीं मेरा? Yes, sir. This is the most correct answer. Character Done. acted, character ओके, अब transformation. नोबडी विल स्पीक, एनफ एनफ एनफ। चलिए आगे बढ़िए। क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो सब बकवास छोड़ दो, अभी क्या है उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। हो तो बहुत कुछ सकता है, बट क्या है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। जिस आदमी ने दो दो का कॉम्बिनेशन, चाहे वो ए पोजीशन पे था, बी पे था, सी पे था, डी पे था, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को, वो किसी को मालूम नहीं कौन कौन से ऑर्डर पे था, तो जो भी जिस भी ऑर्डर पे था, ये दो चीजें जिसने पकड़ के डाल दी, उसकी झोली में 2 मार्क्स आ गए, जिसने नहीं डाली उसके 2.5 चले गए। बात खत्म, आगे बढ़ो। ट्राई टू हैव ए क्लियर विजन इन योर लाइफ, डोंट गो बाय ए बी सी डी, सी डी बी डी, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को कि कौन सा ए पे था, कौन सा बी पे था। आप फैक्ट ढूंढिए, फैक्ट दो है, दोनों के दोनों जहां भी जिस भी ऑर्डर में थे वो वाला करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि वहां पर क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था, टेम्पो रिदम, टेम्पो इज स्पीड एंड रिदम इज वेरिएशन, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा कोई था? सर ये ये था कि क्वेश्चन नहीं सर, ये टेम्पो ऑप्शन था सर। ये ऑप्शन था उसका, और ये सर ऑप्शन हाँ था, ये ओके ऑप्शन था। ओके, क्वेश्चन इट ये था वाज नॉट सर ए कि क्वेश्चन, टेम्पो एंड रिदम अकॉर्डिंग टू स्टेनिस्लावस्की सिस्टम, मतलब वो क्या डिनोट करते हैं, वो क्या इट चीज है? वाज तो इट वाज ए ऑप्शन इन सम क्वेश्चन, इट वाज वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है जी, यस यस सर। it was an option, it was not a question, so it is an option. I'll tell you the question Wait, actually. It was wait. It was one of the option, it was not the question. अब ये ऑप्शन कहां था वो हम ढूंढ लेंगे, अभी मैं वो क्वेश्चन नहीं है, मुझे इतना कंफर्म हो गया, बस बात खत्म। सिस्टमेटिक तरीके से चलो, वरना जिंदगी में नहीं बैठे हुए डिस्कशन करते रहोगे। अब इसके अलावा जो अब ये सिनिकल वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, कोई ऐसा क्वेश्चन था, हॉरर सीन प्रिपेयर एन ऑडियंस फॉर सस्पेंस एंड डार्क सीन, ऐसे कुछ करके कोई क्वेश्चन था? सर ये Yes, सर sir. ऑप्शन था, ये भी ऑप्शन था ऑप्शन सर, ये से ऑप्शन था। रिलेटेड था, जॉनर से रिलेटेड। हाँ अब और मुझे सर इसमें क्वेश्चन एक बताइए, क्या क्वेश्चन था? वो जॉनर से रिलेटेड था, वो तो समझ आ गया, अब क्वेश्चन क्या था, ये हमारे लिए चैलेंज सर है। इनफैक्ट ऊपर वाले इट वाज ऊपर सर जो विच आपने ऑफ द ऑप्शन फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक मिनट, विच, वो एक डायरेक्टर का क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्टर मैच करने हैं, वो मैं वहां पहुंच जाता हूं पहले। ये था विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैचिंग, साहिब बीबी और गुलाम बिबल मित्रा, ये वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है वो, मैचिंग वाला, जॉनर वाला? सर नो नहीं, सर, ये नो सर, सेपरेट नो क्वेश्चंस था, ये सेपरेट क्वेश्चन है वो। ठीक है, वो अभी वाला। उसमें आ जाते हैं। हाँ जी, अब उस सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बोलिए क्या था? सर मुझे थोड़ा थोड़ा इसका याद है, इसी का 19th का, कि इट इज समथिंग लाइक हाउ ऑडियंस परसेप्शन विल चेंज व्हेन दे गो फॉर watching any kind of like movie or performance, and then there are many options. Question is like that. It was related to genre. It was how will genre affect an सर हाँ, audience's एक मिनट expectations? रुक जाओ, हाउ द Genre affect when audience affect the audience perception perception हाउ and द जॉनरा ऑफ द मूवी movie or any performance. affects the Audience audience perception। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या था बताइए अब जरा। this सर was इसमें एक the ऑप्शन, सर इसमें एक ऑप्शन ये था कि क्या बोलते हैं, मतलब कॉमेडी और रोमांस करके एक ऑप्शन था, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। So it was हाई something कि बजट मूवी, हाँ high समथिंग, हाँ budget movies goes for हाँ national हाई awards. एक, यस सर। कॉमेडी और कॉमेडी, हाई रोमांटिक बजट कॉमेडी। मूवीज ऑलवेज विंस अवार्ड्स, ऐसा कुछ तो था। सर पहला ऑप्शन ऐसे था that the high budget देखो, movies they पहले always टू को end up छोड़ winning दो, awards. सर यहाँ मैं बोलूं, पे ऑप्शन की बात हो रही है, पहले दूसरे तीसरे चौथे की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन बता दो, उसको कहाँ रखना है उसको भूल जाओ तुम। सर ऑप्शन एक क्या था वो? एक सर In romantic comedies, people expect tragic endings and romantic intensity, something yes, like that. एक मिनट, ये रोमांटिक कॉमेडी, People हाँ हाँ expect tragic endings and romantic intensities, पीपल something like that. एक्सपेक्ट, People expect tragic endings Endings and and high
intense हाँ, intense High romantic. ऐसा कुछ था intensity drama हाँ or something like that. अच्छा, दूसरा क्या था? हॉरर so सीन the प्रिपेयर second was ऑडियंस only फॉर high budget सस्पेंस। films make into the awards. दोबारा बोलो क्या था? High budget films हाई बजट फिल्म्स make into the big मेक awards. नेशनल अवार्ड्स। हाँ नेशनल ऐसा अवार्ड नहीं होगा। नेशनल हाँ अवार्ड सर नेशनल अवार्ड नहीं था awards का था। सिर्फ अवार्ड दोनों था, ऑप्शंस अवार्ड में दिया कुछ हुआ कुछ था। चीजें मेंशन करना रह गया है, जैसे सेकंड ऑप्शन में ओनली हाई बजट फिल्म्स मेक इनटू बिग अवार्ड्स आएगा, एंड फर्स्ट ऑप्शन में इन रोमांटिक कॉमेडी पीपल एक्सपेक्ट अ ट्रेजिक एंडिंग एंड इंटेंस ड्रामा, ऐसा कुछ करके था। एंड इंटेंस ड्रामा। चलो यस सर। थर्ड ऑप्शन बोलो। Fourth हॉरर सीन option का like क्या था? John. Sir, I think horror वाले scene में भी I think it is not only scene, I think it is a horror movie prepare an audience for the suspense and dark scene. सर उसमें फियर सर भी था। फियर से रिलेटेड भी कुछ था कि हॉरर हाँ, fear word भी था prepares सर an उसमें। audience, fears audience and prepares them for suspense, For ऐसा कुछ करके था सर। suspense, thrill, For dark sus- scenes fear. and fear. हाँ एक एक करके बोलोगे तो समझ आएगा, मैं लिख पाऊंगा। हॉरर मूवी Prepares an audience prepare an audience for suspense, thrill, prepare fear an and audience dark for scenes. suspense and Thrill, thrill fear and dark scenes. Dark Thrill? visuals. हाँ thrill आगे Dark thrill visuals. fear. fear। थ्रो सस्पेंस एंड थ्रिल, उसके बाद सर क्या है? एंड हटा दीजिए आप, Fear, सस्पेंस fear, थ्रिल fear. फियर, सस्पेंस उसके बाद फियर Fear and dark visuals. थ्रिल नहीं है, थ्रिल नहीं है उसके अंदर। है नहीं सर। सर। No, sir, Okay. thrill was not there. No, thrill was not suspense ही था चलो सिर्फ। चलो, फियर एंड डार्क विजुअल्स। Yes. चलो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा बोलो। Sir, fourth option was like कि genre does not matter. It is on the filmmaker, I guess. Something like चलो that. यस genre Filmmaking, it is related to filmmaking. हाँ, ऐसा। filmmaking. Genre चलो genre genre matter. doesn't matter related to film making। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या होना चाहिए भाई अभी तुम्हारे हिसाब से अनिर्बान? ये सर इसके हिसाब ये सिंगल आंसर है कि मल्टीपल आंसर है? Single. Single सिंगल answer. ऑन। Three is only the correct answer because others doesn't make any sense. ठीक है, चलिए हो गया ये हमारा, ये वाला करेक्ट हो गया फिर जी। आपने वो टेम्पो रिदम जो ऊपर छोड़ा है वो सेपरेट एक क्वेश्चन है, मतलब वो किसी और का ऑप्शन नहीं है, वो यही क्वेश्चन था कि टेम्पो एंड रिदम अकॉर्डिंग टू स्टेनिस्लाव्स्की सिस्टम सिग्निफाइज, और फिर ये उसके ऑप्शंस है। एक मिनट रुक जाओ। टेम्पो रिदम अकॉर्डिंग टू स्टेनिस्लाव्स्की सिस्टम सिग्निफाइज, और फिर उसके ऑप्शंस थे। स्टेनिस्लाव्स्की सिस्टम। Sir, एक मिनट the एक मिनट एक मिनट कि पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट थिंग। टेम्पो रिदम अकॉर्डिंग टू स्टेनिस्लाव्स्की सिस्टम, आगे सिग्निफाइज, मतलब उसका signifies, हाँ, और उसके नीचे ऑप्शन थे। फिर यही ऑप्शन थे कि टेम्पो इज द स्पीड एंड रिदम सेट्स द फ्लो। अच्छा अब ये बताओ कितने लोग एग्री करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन था वहां पे या नहीं था? Agree, sir. हाँ सर था sir, सर, ऐसा question क्वेश्चन था टेम्पो framing रिदम ये का नहीं था। क्वेश्चन था। चलो ठीक है, क्वेश्चन था, ये कंफर्म हो गया। तो टेम्पो रिदम अकॉर्डिंग टू स्टेनिस्लाव्स्की सिस्टम सिग्निफाइज, क्या क्या ऑप्शन थे बोलो अब। सर एक टेम्पो ऑप्शन इज ये द था स्पीड, कि एक बार एक टेम्पो एक करके बोलो। टेम्पो इज द स्पीड एंड रिदम सेट्स द फ्लो ऑफ अ सीन, ऐसा कुछ अच्छा वो करके ऊपर तो नहीं लिखा है मैंने, इसमें पढ़ने दो मुझे। एन इंक्रीज इमोशनल सीन, इंक्रीज ड्रामेटिक टेंशन, ओनली ऑप्शन एंड में इनर कैरेक्टर नॉट ऑलवेज रिवील बाय स्पीच, साइलेंस ऑलवेज कन्वे द इमोशन। चलिए इस पे आ जाइए। अभी क्या था? टेम्पो रिदम अकॉर्डिंग टू स्टेनिस्लाव्स्की सिस्टम सिग्निफाइज, पॉइंट नंबर 1 बोलिए। So tempo is the speed and rhythm sets the flow of a scene. एंड Rhythm रिदम sets the flow of a scene. सेट्स द फ्लो ऑफ द सीन। It was हाँ, flow or language pattern. शायद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसका कोई बात summary नहीं, है। आप Yes, वो sir. भूल जाइए ए बी सी डी 1 2 3 कौन सी पोजीशन पे है, आप उसको भूल जाइए। आप केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करिए कि ये ऑप्शन था या नहीं था। मैं ये बात 10 बार अब तक बोल चुका हूं। भूल जाओ कौन सी पोजीशन पे था, मुझे केवल ये बताओ कि क्या ये ऑप्शन था या नहीं था, दैट्स इट।
सर मैं पोजीशन का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज शायद कुछ और हो सकती है, उसकी समरी ऑप्शन की यही थी। टेम्पो इज द स्पीड एंड रिदम सेट्स द फ्लो ऑफ द सीन। अच्छा, लोग एग्री सर करते हैं समथिंग लाइक दैट वाज देयर? Yes, यस sir. सर। हाँ सर। ठीक है, दूसरा बोलो। सर एक ऑप्शन ये था कि टेम्पो इज द इमोशनल फ्लो एंड रिदम इज द इनर मूवमेंट, समथिंग ऐसा। टेम्पो इज द Tempo is the physical one. इमोशनल फ्लो, Tempo is इमोशनल physical फ्लो। and टेम्पो इज Tempo is द reflected by external movements and tempo is rhythm physical and created. rhythm is emotional. सर मुझे एक पूरा ऑप्शन पता है। बोलो। सर टेम्पो इज स्पीच बेस्ड एंड रिदम इज मूवमेंट बेस्ड, Sir, ऐसा पूरा लिख के था optional सर। नहीं, emotional, emotional. Optional नहीं. एक मिनट, इसको दोबारा से करेक्ट करते हैं हम दूसरे को। टेम्पो इज फिजिकल, Rhythm is emotional. रिदम इज इमोशनल। ये हो गया जी दूसरा हमारा। थर्ड पे आइए। हाँ जी। सर टेम्पो इज स्पीच बेस्ड एंड रिदम इज मूवमेंट बेस्ड, ऐसा लिखे था। स्पीच बेस एंड मूवमेंट एंड रिदम इज मूवमेंट बेस्ड। बेस। हाँ जी, चौथा बोलिए अब जरा। So tempo is speed and rhythm is variations of speed. टेम्पो इज Speed, स्पीड एंड rhythm is variations of speed. ऑफ स्पीच। हाँ जी। अब अगर यही करेक्ट ऑप्शंस थी तो इसमें पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या मल्टीपल अल्टरनेटिव थे या एक ही अल्टरनेटिव दे रखे? नहीं, एक ही था सर आंसर। एक ही था। चलिए भाई, तो आसान हो गया। अनिर्बाण, अभी देख लो इनमें से कौन सा ठीक लग रहा है। उनकी करेक्ट आंसर था। दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अगर एक ही करेक्ट आंसर है तो एक नंबर ही करेक्ट होना चाहिए। नंबर टेम्पो इज 1। स्पीड एंड रिदम सेट्स द फ्लो ऑफ द सीन। यस। इस क्वेश्चन में बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी लूजली करेक्ट होने के कगार पे है, बट 1 इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। अगर ये अल्टरनेटिव एक ही था सर दोस्तों, अल्टरनेटिव एक था कि नहीं? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ। एक ही था सर। Yes, sir, एक only ही था one. सर। ठीक है। पर सर इसके पूरे ऑप्शंस ऐसे थे कि सर 3 ऑप्शंस छोटे छोटे थे बोलो। और एक ऑप्शन था जो बड़ा था, जिसमें टेम्पो इज स्पीड एंड रिदम इज वेरिएशन बेस्ड, ऐसा कुछ तो भी था सर। वेरिएशन ऑफ स्पीच ऐसा कुछ तो भी। पैटर्न बाकी समथिंग। तीनों ऑप्शंस सर छोटे थे, मतलब एकदम टेम्पो का बता दिया और रिदम का बता दिया, बस एक तो एक वर्ड में। जो थोड़ा चारों सा ही बड़ा एक जैसे ऑप्शन दिख था रहे सर, हैं। वो फर्स्ट वाला ऑप्शन, यही जो टेम्पो इज द स्पीड एंड रिदम सेट्स द फ्लो ऑफ द सीन, इसी को उन्होंने थोड़ा सा एलैबोरेटिव वे में लिखा था। चलो बाकी कोई सारे बात नहीं। छोटे थे कि अब अगर ये टेम्पो। एलॉबरेटिव था तो नीचे वाले बता दो छोटे छोटे क्या थे। टेम्पो इज द सर फिजिकल एंड रिदम इज हाँ, इमोशनल। वही यही जो लिखा हुआ है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। टेम्पो इज फिजिकल, रिदम इज इमोशनल, फिर ठीक है, टेम्पो इज स्पीच, रिदम इज मूवमेंट, एक मिनट। टेम्पो इज स्पीच एंड एंड रिदम इज मूवमेंट। इज मूवमेंट। ठीक है, हो गया। एंड और अगेन द बोलो। लास्ट वन भी वही था कि टेम्पो इज, आई एम नॉट श्योर अबाउट स्पीड, लेकिन रिदम इज वेरिएशन ऑफ स्पीच तो पक्का था। तो टेम्पो स्पीड के साथ भी हो सकता है ना। टेम्पो स्पीड हाँ पहले भी तो ठीक सर, है, टेम्पो हाँ स्पीड यहाँ भी डाल दिया और उसमें वो भी घुसेड़ दिया साथ वही, में। यहाँ तो ये तीनों बड़े छोटे छोटे ऑप्शन थे, और जो पहला ये अपन ने लिखा है टेम्पो इज द स्पीड एंड रिदम सेट्स द फ्लो ऑफ सीन, शायद हाँ इसी को थोड़ा सा उन्होंने एलैबोरेट करके लिखा था। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया अभी अनिर्बाण, ये पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है जी। 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाउ द जॉनर ऑफ द मूवी अफेक्ट द ऑडियंस, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब हो ये चुका है। क्वेश्चन है जो थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा इन द सेंस, टेढ़ा नहीं है। इसमें एक लड़की है, मिशेल इज ब्लाइंड एंड डेफ गर्ल whose mentor is having a conversation with her, and he says you have to feel everything and know the world through hands and other senses. Pay attention to sounds. The path is going to be difficult and only belonging to her. With patience she will learn to overcome, and that is that he will not be able to, he will not be a teacher but mentor to a guide her. अब ये थर्ड पर्सन में था या फर्स्ट पर्सन में था? पहले तो ये क्वेश्चन ही ठीक से फ्रेम नहीं है। सर वो ये एक पैराग्राफ में तरीके ये से एक भी था सर सिचुएशन, कि मेंटोर बता रहा है कि
तुम अपनी एक दुनिया अलग क्रिएट करो, अब वो लोगों से अलग रहेगी, मतलब वो एग्जैक्टली लोगों से अलग होगी। चलो अभी क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं, वो असली चीज है। व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिशेल, ये ऐसे कोई क्वेश्चन था? सर लाइन टू लाइन पैसेज से थी, मतलब कि जो परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड है वो एज इट इज पैसेज में लाइंस एज इट इज दी हुई थी, मतलब वर्ड्स दिए हुए थे। अभी मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसके यस अल्टरनेटिव एग्जैक्टली हाँ था सर, मैं सर, वही हाँ बोल रहा सर। हूँ। हाँ यस सर। व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिशेल, ये था क्वेश्चन? हाँ सर सर, था। हाँ सर, ठीक है, अभी अल्टरनेटिव बोलो। इट वाज सेम एज अदर्स, ये भी था सर ऑप्शन में। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नहीं ये नहीं था सर, पैसेज में लिखा हुआ है वो, अपन ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो पैसेज में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड उसके लिए क्या था, तो वो ऑप्शन था, बाकी सारे एग्जैक्ट कुछ नहीं सर, थे। एग्जैक्ट सेंटेंसेस पैसेज से उठाए हुए हैं। हाँ वही। अच्छा, तो पैसे ठीक कर लेते हैं हम। मैसेज, मिशेल इज ए ब्लाइंड एंड डेफ गर्ल। उसके बाद क्या था? his mentor is having a conversation with her. His mentor is having a conversation with her and he says you have to feel, ये क्या लिख दिया है यार लोगों सर ने? ऐसा कुछ था, शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, शी विल हैव टू क्रिएट हर ओन वर्ल्ड। You have to feel everything and know the world through hands and other sentences, ऐसे करके था कुछ। सर उसमें पेशेंस वर्ड भी था सर, पेशेंस। She has to feel with her heart and her परफेक्ट, हाँ hand. एक लाइन ये पक्का हाँ था बाय सर, हार्ट। यू हैव टू फील फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर माइंड। You have to माइंड feel नहीं था, हैंड everything। था सर, हैंड था। Is like that. Feel हैंड with था सर, क्योंकि वो डेफ है इसलिए। feel with your heart and hands, and then the senses are there. With your एग्जैक्टली mind. सर, हाँ माइंड था। With your heart, hands and mind. एग्जैक्टली Heart With the hands, with the body, and with the mind. and body, ऐसे कुछ करके था। उसमें सर और एक सर सेंटेंस एक ये और भी पॉइंट था भी कि था। क्या? यू हैव टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, एग्जैक्टली सर, ऐसा कुछ तो भी शुरुआत ही था। ऐसे होती है कि उसकी टीचर उसको ये सर बोलती है कि ऐसा था कि listen through heart and feel through hands and अ, body, hands उससे and उससे पहले Yes. एक और था सर कि मतलब बाहर की दुनिया में बहुत शोर शराबा है और तुम्हें अपना अंदर के मतलब वर्ल्ड को जानना है, ऐसा कुछ है था। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही। वो चलो तुम्हारा वर्ल्ड अलग तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी था। सर इन शॉर्ट वो ऐसा बता रहा था कि वो मेंटर मतलब सर इट स्टार्ट्स तुम्हारी विद दुनिया कि बाहर की मिशेल दुनिया की। की तरह नहीं होगी। दुनिया की ठीक है, बाहर की दुनिया की में बहुत ही शोर शराबा होगा और तुम्हें अपने अंदर की वर्ल्ड को जानना है, उसके लिए तुम्हें अपना हार्ट और हैंड को यूज करना है, ऐसा कुछ था। ठीक है, और अब बोल लिया आपने। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आदमी बोलो। अब क्वेश्चन बोलना चालू करो, अंग्रेजी में सेंटेंस बोलना चालू करो। मिशेल इज ब्लाइंड एंड डेफ गर्ल। आगे। Michelle is blind and deaf girl. Her mentor is having a conversation with her, and she says, शी सेज और ही सेज? "Sir, it does not matter." वो ओके चलो, फीमेल टीचर थी या मेल ठीक है, टीचर था, सेज। बट आगे हाँ, आगे आगे। that the world is different for you than others, द वर्ल्ड is इज different for you than others, डिफरेंट फॉर यू देन than अदर्स। others. ठीक है। You have to feel with heart and hands and mind. हार्ट Sorry to हैंड, interrupt, but it is you have to listen. you have to feel through her hands and the mind. you have to listen through what? Listen through heart and feel through hands and mind. You have to listen Yes, sir. through heart, And feel through hands and mind, I guess. Yeah. feel through hands। Feel with भी हो सकता है, with था I कोई guess. बात नहीं, विद और हाँ हैंड सर, एक ही बात है। हाँ बस सर, Feel feel with with hands hands। and mind. And hands and mind, हाँ. ठीक है, आगे बोलो, अब आ जाओ, आगे आ जाओ। ये सर पे अटेंशन यू टू साउंड, ऐसा कुछ था? नहीं सर, वो डेफ थी तो पे अटेंशन टू साउंड्स No, नहीं था sir. ये पॉइंट। your path is going to be different and द only पाथ इज belonging, गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड ओनली बिलोंगिंग टू your and path only is belonging going to be difficult and only belonging to you with patience, with क्योंकि ये patience। हाँ, you will learn to overcome
आगे You will learn to overcome. पता नहीं सर। Frustration शायद. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ, गिव अप नहीं कर सकता, ऐसा भी था कुछ तो यू लिखा। कैन हाँ नॉट एग्जैक्टली, अफोर्ड गिव टू अप नहीं लूज कर सकता। ऑप्शंस में लिखा है बेटा गिव अप, ये क्वेश्चन की बात हो रही है अभी। हाँ यू सर, कैन नॉट क्वेश्चन में अफोर्ड था नहीं टू सर, ये लूज। पैसेज पॉइंट में कि भी यू कैन लिखा नॉट। था, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप, ऐसा कुछ तो भी सर लिखा था। यहाँ से था योर पाथ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड ओनली बिलोंग्स टू यू. You cannot give up. With patience, you will learn to overcome. You cannot give up. And with patience, you will learn to overcome the difficulties. या फिर कुछ अच्छा कुछ करके You था. will With learn to overcome. patience and courage. Patience and courage, yes. With patience and courage, you will learn to overcome the difficulties. ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी इसमें वो आ जाइए, क्या बोलते हैं पर नीचे जो अल्टरनेटिव थे। सेकंड ऑप्शन सर आप लिख दीजिए इसमें, इट वाज डिफरेंट एज अदर्स. डिफरेंट It देन was अदर्स कर दीजिए. इट वाज डिफरेंट देन अदर्स. then others. और यही वो लाइन है जो पैसेज से एज इट इज आई थी. फिर पैसेज से बाकी उठा के दो ली ऑप्शंस कुछ भी थे. हाँ, ठीक है। बाकी दो ऑप्शंस कुछ भी थे रैंडम. It was same as मैटर नहीं others. पहला ऑप्शन है what is the हाँ हाँ. perception of the world for Michelle. It was same as others. दूसरा है it was different than others. It was जी. bogus. It was another world, तो वही हो गया ना मतलब। अनदर वर्ल्ड नहीं था, कुछ और So था बट third बड़ा और रैंडम fourth था. नहीं थे. हाँ, थर्ड और फोर्थ बड़े रैंडम से कुछ थे जिनका कोई लेना देना नहीं था पैसेज से. तो थर्ड वी चलो कैन कीप. तो क्वेश्चन अभी अल्टरनेटिव क्या हो, करेक्ट आंसर क्या हो गया इसके अंदर? सर Second. सेकंड वाला Different जो from है. others. ठीक है जी, जी सर. चलिए अब आगे बढ़िए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि विथ व्हाट मिशेल कैन ओवरकम द डिफिकल्टीज. तो हाँ, उसमें ये जो देखो यहाँ पे करेक्ट विच ऑप्शन टेक्निक, एक तो देखो क्वेश्चन सुन लो, विच टेक्निक ऑफ एक्टिंग ही इज एडवाइज टू हर इन दिस। दूसरा है व्हाट हर मेंटर वाज एनकरेजिंग हर टू डू। इफ ए मेथड एक्टर प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर, व्हाट विल बी हिज प्रिपरेशन। द मेंटर इज एडवाइजिंग हर टू यूज विच सेंसेस। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इनमें से अब आप बोलना चालू करिए। ये तो पहला कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे इसमें, ये भी कंफर्म है। अब आप बोलिए दूसरा जी क्वेश्चन सर. क्या था? दूसरा सर जो है अभी उसमें मैंने आई लिखा है गेस विच टेक्निक ऑफ एक्टिंग ही इज चारों सही है. एडवाइजिंग हर टू, था है ये? यस सर. हाँ सर, हाँ सर. चारों सही चलो, है. थर्ड ऑप्शन आई गेस वो सिग्निफाई करता है उस टेक्स्ट पर जो ऊपर पैसेज दिया है. तो अभी अनिर्बान, विच Yes, टेक्निक sir. ऑफ एक्टिंग ही इज एडवाइजिंग टू हर इन दिस डिस्कशन पैसेज. मैसेज? हाँ. Sir, क्या third होना चाहिए? option is incorrect. Third ये नहीं था, realization नहीं था, realism था. Psychological realism. Yes, psychological Yes, realism. sir. रियलिज्म, चलो रियलिज्म हो गया। हाँ जी, ये अनिर्बान क्या होना चाहिए? मैजिक इफ होना चाहिए आंसर, और नहीं तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म होने के चांसेस है, थोड़ा सा पैसेज देखना पड़ेगा। वो वही है कि एक ब्लाइंड लेडी है, उसको वो उसका मेंटर बता रहा है कि तुम्हारी दुनिया अलग है और तुम्हें लोगों से हिम्मत नहीं हारनी और तुम्हें जो है अपने दिल से महसूस करना है और अपने हाथों से और अपने दिमाग से सोचना है। बेसिकली वो ये है, उसको एडवाइस दे रहा सर है, बेसिकली एक एनकरेज कर रहा है, बेसिकली एक नहीं सर, पॉजिटिव तरीके। पैसेज में ये भी था कि तुम्हें अपनी दुनिया अपने खुद दिमाग में बनानी बनानी है. होगी। हाँ, अपनी दुनिया अपने दिमाग से बनानी है. इसीलिए तो मैं आई बोल रहा हूँ थिंक कि इट्स मोटिव साइकोलॉजिकल क्योंकि तुम रियलिज्म भी सुन हो नहीं सकता है। सकती हो उसको और तुम देख नहीं सकती हो. देखो उजूल फुजूल की बातें मत करो, सेंटेंस बोलो बेटा। यू हैव टू मेक योर Sir, you वर्ल्ड have ऑफ to योर, create your own world. तो एक ही बात है, यू हैव टू मेक योर वर्ल्ड ऑफ योर ओन। Yes, sir. Sir, you can मीनिंग put this उसका वही है। sentence right after that second line of the passage. Conversation with her, she says, the world is different for you than others. You have to create your own world by listening through your heart, एक feeling मिनट, with ये hands कहाँ and पे mind काट के डालना है? मेंटर इज हैविंग कन्वर्सेशन विद हर एंड ही सेज द वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम यू देन अदर्स, than others. You have to create your own. ऐसा फिर वर्ल्ड वो ऑफ योर कंटिन्यू ओन। करता है. ठीक है, ठीक है। यू हैव टू लिसन टू योर थ्रू हार्ट, फील, ये वो हो गया। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। ये मैजिक इफ हो गया जी इसके अंदर, एडवाइस वाला क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हर मेंटर वाज एनकरेजिंग हर टू डू। Sir, I'm sorry, but magic if मतलब I don't think बोलो so. बोलो। सर Yes, मैजिक sir. इफ लग सर नहीं रहा है वो, गिवन क्योंकि गिवन Sir, इसका सर्कमस्टांसेस ज्यादा लग रहा option है। third था सही. हाँ मुझे सर 21 साइकोलॉजिकली लग रहा है सर. अभी सब लोग साइलेंट हो जाओ। सर
मेरे को हाँ इतना याद है कि जो मैजिक इफ है वो क्वेश्चन का पार्ट था मैजिक इफ और क्वेश्चन का इसमें पार्ट था। क्वेश्चन का पार्ट था, हाँ, नो सर, जितना नो। मुझे याद है। नो सर, आई ऑल्सो नहीं डोंट नहीं, थिंक वो सो, मैजिक दूसरा का नहीं क्वेश्चन था। था। दूसरा कौन सा क्वेश्चन होगा, वो इसमें नहीं था। इसलिए सर मुझे भी वो साइकोलॉजिकल लगा, क्योंकि वो दिमाग का यूज करने का बोल रही है। कहीं पर भी उसने मिशेल को ये नहीं बोला था कि इमेजिन करो इफ यू आर लाइक दिस और समथिंग लाइक अच्छा दिस। आई ठीक थिंक है, अनिर्बन सर अगर एक बार पैसेज को गो थ्रू करेंगे तो ही विल आल्सो एग्री, आई गेस। ऐसे देख लो अनिर्बान, Michelle is a blind and deaf girl. His mentor is having a conversation with her and he says the world is different for you than others. You have to make your own world. You have to listen through your heart and feel with hands and mind. Your path is going to be difficult and only belongs to you. You cannot give up. With patience and courage, you will साइकोलॉजिकल learn to रियलिज्म है overcome सर, the difficulties. ये है साइकोलॉजिकल रियलिज्म इट इज सर। यस सर, साइकोलॉजिकल नंबर रियलिज्म 3, आया। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3। ठीक है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म ले लेते हैं। एवरीबॉडी एग्रीज? यस सर। Yes, sir. ओके, सर कैन आई से समथिंग सर? बोलिए बोलिए। सर मेरे क्वेश्चन पेपर में यू सेट मिला था, एज आई डिस्कस्ड यू विद यू अर्लियर, कि मेरे में ए बी सी का ऑप्शन ही नहीं था सर पूरे पेपर में। चलो वो डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर ये क्वेश्चन था और ये 4 अल्टरनेटिव थे तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? करेक्ट है? Yes, sir. एवरीबॉडी यस सर, एग्रीज? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है, यस सर। आगे आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट हर मेंटर वाज एनकरेजिंग हर टू डू? सर इसमें सर मल्टीपल ये आंसर्स थोड़ा थे। ऐसा था कि व्हाट हर मेंटर वाज एनकरेजिंग हर टू डू इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, मतलब या फिर क्विट ना करने के लिए, तो उसमें वो पेशेंस एंड करेज वाला एंगल लाए हुए थे वो लोग। द मेंटर एडवाइजिंग हर टू यूज विच सेंसेस, ऐसा कोई क्वेश्चन था? हाँ सर, एंड द ऑप्शन द हैंड्स बॉडी एंड माइंड वाला, वो जो ऊपर पैसेज में मेंशन है, वो ऑप्शन में था। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट हर मेंटर वाज एनकरेजिंग हर टू डू? डोंट एक्सेप्ट द डिफीट, एक्सेप्ट द डेस्टिनी, करेज एंड पेशेंस, डोंट क्विट, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, इनर वॉइस। पहले क्वेश्चन A फॉलो नहीं था, A ऑप्शन नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन वाज एक्सेप्ट द डेस्टिनी। चलिए आगे, आपका डेस्टिनी, आगे बोलिए। सेकंड वाज करेज एंड पेशेंस, ठीक है, एंड देन थर्ड वाज साइलेंस इज स्ट्रेंथ, और फोर्थ शायद वही था, डोंट क्विट। नहीं, बट इनर वॉइस देन नहीं था, डोंट इनर क्विट एंड वॉइस नहीं करेज था। एंड पेशेंस विल अलाइन। शायद क्वेश्चन ये था, व्हाट हर मेंटर वाज एनकरेजिंग हर टू डू इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, या कुछ ऐसा कुछ का था। वी कैन डिस्कस एंड फिगर इट आउट। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग। हाँ, तो उसमें शायद करेज एंड पेशेंस वाली बात आई थी। तो डोंट क्विट नहीं आएगा इसमें फिर, इसका मतलब? हाँ, क्योंकि फिर वो सर सेम चीज हो जाएगी ना, करेज एंड पेशेंस एंड डोंट क्विट। तो ठीक है, तो अभी ये हो गया एक्सेप्ट द डेस्टिनी, करेज एंड पेशेंस। ठीक है, एंड थर्ड इज साइलेंस एंड स्ट्रेंथ। फोर्थ वाला ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा है, इनर वॉइस वाला शायद नहीं था। सर आई गेस वही सर था, द डोंट फोर्थ एक्सेप्ट द डिफीट। ऑप्शन इनर वाज वॉइस टू नहीं था। एक्सेप्ट डिफीट। हाँ, डोंट एक्सेप्ट द या ओके, डिफीट। फोर्थ या क्या था? एक्सेप्ट द डिफीट। एक्सेप्ट हर डिफीट, ऐसा कुछ। एक्सेप्ट हम्म। डिफीट। ठीक है जी, और ऐसा कुछ। सेकंड ऑप्शन में आप कर दीजिए सर, शो करेज एंड पेशेंस। शो करेज एंड पेशेंस। शो करेज एंड पेशेंस। यस। ठीक है, सर हाँ इसमें जी, डोंट एक्सेप्ट द डिफीट। हाँ सर, डोंट एक्सेप्ट द डिफीट था सर। डोंट एक्सेप्ट द डिफीट। और आई गेस सर इसमें मल्टीपल ऑप्शंस थे। हाँ जी, इसमें मल्टीपल ऑप्शन थे, तो बोलिए अब कौन Yes, कौन से sir. ऑप्शन हो सकते हैं? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड सेकंड है फोर्थ। शो करेज एंड पेशेंस, कॉमन सेंस का क्वेश्चन एक्चुअली ये, तो वो उसको एनकरेज करेगा तो यही बोलेगा करेज होना चाहिए, सर फलाना ढिमका, वो सब। ये आई थिंक अमंग द सबसे इजीएस्ट थे, क्योंकि एज इट इज पैसेज से उठ के ही ऑप्शंस थे और आपको ठीक है, सिर्फ कोई रीड बात नहीं। करना है। व्हाट आर मेंटर वाज एनकरेजिंग हर टू डू इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, एक तो था शो करेज एंड पेशेंस एंड एंड फोर्थ डू नॉट वाला एक्सेप्ट ऑप्शन द सर। डिफीट। ठीक है एग्जैक्टली जी, जी। ठीक है जी, ये 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास करेक्ट। ठीक है जी, आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। इफ ए मेथड एक्टर प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर व्हाट विल बी हिज प्रिपरेशन, ऐसा क्वेश्चन था कोई? यस सर। वेरी गुड। अब विजिट स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ पीपल, watching the work of actor and copying them, या observe the given circumstances. Visit special school, meeting the teacher of blind and deaf to understand their behavior, reading the speech out
सर ये जो Loud मल्टीपल 7. चॉइस था। हाँ सर, इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, मल्टीपल चॉइस वाला था, मतलब कि Correct. इनमें से ठीक दो है। ऑप्शन सही होंगे। कौन कौन से? सर A and C. फर्स्ट वाला जो है विजिटिंग स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ पीपल एंड ऑब्जर्विंग द गिवन सर्कमस्टांसेस ऊपर था, वॉचिंग एंड वर्किंग इज अ डिफरेंट। हाँ, ये वॉचिंग द वर्क्स ऑफ एक्टर एंड कॉपिंग देम, ये Copying them सेपरेट is- करके आगे कुछ नहीं था सर। इसके आगे और कुछ ये नहीं था। ऑब्जर्विंग ऊपर ऊपर ही आएगा सर, डेफ पीपल के बाजू में। देखो ये तीन ऑप्शन आ रही है, विजिटिंग स्कूल ऑफ ब्लाइंड डेफ पीपल एक ऑप्शन, वॉचिंग द वर्क ऑफ एक्टर एंड कॉपिंग देम दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ऑब्जर्व द गिवन सर्कमस्टांसेस, चौथा हो गया विजिट, फिर चौथा विजिट है नहीं विजिट। नहीं सर, ऑब्जर्विंग द गिवन सर्कमस्टांसेस फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट करेगा, विजिटिंग स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ पीपल ऑब्जर्व देम एंड देयर गिवन सर्कमस्टांसेस। तो इसको पहले वाले में ही डाल दिया जाए, आप ये कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, विजिटिंग स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ पीपल एंड ऑब्जर्व द गिवन सर्कमस्टांसेस। Yes. ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन वॉचिंग द वर्क ऑफ एक्टर्स एंड कॉपिंग देम, ऐसा था कुछ? यस सर। ठीक सर है, बाकी सारे ऑप्शन सही। बाकी सही है हमारे सारे के सारे। ठीक है, विजिट स्पेशल स्कूल मीटिंग द टीचर ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, तो वो तो जी। बात वो ही होगी ना, ये वाली विजिटिंग स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड नहीं, डेफ पीपल एंड ऑब्जर्व द गिवन सर्कमस्टांसेस। सर वो था मीटिंग द टीचर्स, आगे की हाँ। जो 3 वर्ड्स हैं वो हटा दीजिए। कहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग सी द ऑप्शन। टीचर? सर विजिट स्पेशल स्कूल हटा दीजिए। कौन सा डायरेक्टली वाला? सी मीटिंग में द है? टीचर, हाँ सी में सर, सी में। विजिट स्पेशल स्कूल एंड मीटिंग द टीचर में क्या हटा दूं? सर सीधा मीटिंग से शुरू होगा ये ऑप्शन, विजिट स्पेशल स्कूल हटा Yes, दीजिए। sir. नहीं, नहीं सर, नहीं मीटिंग द सर, टीचर्स से आएगा। एग्जैक्टली मीटिंग द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ स्कूल, ऐसा था, मीटिंग द टीचर ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, बस इतना ही। ठीक है, और डी आ गया रीडिंग एंड स्पीच आउट लाउड सेवरल टाइम, ये था कुछ ऐसा? यस, रीडिंग sir. द स्पीच, यस सर। सर था ऐसा। ए एंड सी थे सर। मल्टीपल ऑप्शंस थे सर। मल्टीपल हाँ। ऑप्शन थे, तो अब आप बोलना चालू करिए कि अनिर्बान अगर ये सिचुएशन होगी तो इसमें क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं? सर ए एंड सी। ए एंड सी। ए हो गया और सी हो गया। ठीक है जी, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मेंटोर इज एडवाइजिंग हर टू यूज विच सेंसेस, ऐसा कोई क्वेश्चन था? यस सर। जी सर। क्या था बोलो? सर ऑल हर फैकल्टीज तो हो ही गया, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, हैंड बॉडी एंड माइंड। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ इररिलेवेंट थे, आई मीन उनका कोई रेलेवेंस नहीं था पैसेज से, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि वो चलो इररिलेवेंट था, अभी मैं यहाँ पे इररिलेवेंट लिख देता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है जी। एग्जैक्ट जी सर। अब ये इसके में मल्टीपल था? नहीं सर, सिर्फ सिंगल ऑप्शन था, वो भी ऑप्शन नंबर बी, हैंड बॉडी एंड माइंड। हाँ जी अनिर्बान बोल दो। ओनली बी ओनली। हाँ जी बी ओनली, ठीक है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन था, व्हाट इज द एक्टिंग मेथड यूज्ड हर प्रीमा फेसिया स्टेला एडलर फिल्म का? ये नहीं सर, नहीं सर। नहीं था सर। ये किसी बच्चे ने लिखा है, हमारे एक्टिंग के बच्चे ने, प्रीमा फेसिया, मुझे लगा ये टेक्निकल वर्ड होता है, इसने खोपड़ी में याद रहा होगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा? No, I sir. guess it was something like कि which acting method can be used. अच्छा, अब शायद। यहीं पर वो तो अगर वो ये क्वेश्चन तो हो गया ना, इफ मेथड एक्टर प्रिपेयर दिस कैरेक्टर व्हाट विल बी प्रिपेयरिंग, ये तो क्वेश्चन हो गया, अब उसी का रिपीट होगा ना फिर यहाँ पे। नहीं है सर, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नहीं है सर, आप इसको पूरा रिमूव क्वेश्चन कर। नहीं है, इसको हट दीजिए। चलिए भैया जागो एक्टिंग के लोग, ये हमारे जो बच्चा है किसी ने लिखा है ये प्रीमा फेसिया, मुझे लगा टेक्निकल वर्ड है, याद रह गया होगा उसको। चलो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन क्विकली हम लोग देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर, एक हो गया पहला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। 5 क्वेश्चन सर हो अभी गए। तक हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा वो मतलब? तू छोड़ दे, उसको छोड़ दे तू, अभी हम एक Okay. एक पे कंसंट्रेट कर रहे हो, छोड़ दे तू वो मेरे को Alright. मैं सर फोड़ रहा हूँ पूरे एक दिन से, कल पूरा का पूरा ये सब कट कॉपी पेस्ट हर एक के मैंने पढ़े हैं, ऐसे नहीं एक आदमी का डाल दिया है, वो तो मेरे पे छोड़ दे, अभी जो करेक्ट करते जा रहे हैं उसको करने दो बस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी देख लेंगे हम लोग, उसको छोड़ दो। सर हाँ एक जी, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, अगर वो मेंशन नहीं है तो वो मुझे याद है, मैं कौन बोल सकता। सा? कौन सा?
मतलब एक जनरल एप्टीट्यूड पे था कि a group of actor are sitting वो in आ a रहे हैं room. बेटा, आ रहे हैं अभी ग्रुप ऑफ एक्टर में आ रहे हैं, ABCD वाला वो आ रहे हैं उसमें भी, रुक जा, भाग मत। फ्रेनल लाइट के अंदर बोलो क्या है, क्या क्या ऑप्शन थी? टू गिव सॉफ्ट लाइट था वहां पे ऑप्शन, हाँ सर, सॉफ्ट टू गिव लाइट। हार्ड लाइट था वहां पे। सर एक फोकस लाइट था बेटा एक फोकस स्टेज के नहीं ऊपर। था, वो फ्रेनल है, ये फ्रेंच वर्ड है। मैं नहीं सिनेमेटोग्राफी का आदमी हूं, मुझे ज्यादा पता है तुझसे। एक अब ऑप्शन था ऑप्शन ऐसा, बोलो, ऑप्शन की सर बात करो, ऑप्शन की बात कर रहे हो। बोलो क्या हाँ, है ऑप्शन में। फोकसिंग अ लाइट ड्यूरिंग अ मूवमेंट ऐसा कुछ करके था, मूवमेंट एंड फोकस को उन्होंने इंटरलिंक करके एक ऑप्शन बनाया था। एक मिनट, टू फोकस अ लाइट ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऐसा करके एक ऑप्शन, फोकस, टू फोकस अ द लाइट लाइट ड्यूरिंग मूवमेंट ड्यूरिंग मूवमेंट। ऑफ ठीक है, एक्टर्स। वो स्पॉटलाइट वो स्पॉट के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता, बट ठीक है, उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। चौथा बोलो। सर एक ऑप्शन फर्स्ट मुझे ऑप्शन में ऐसे होगा सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट विद एडजस्टेबल फोकस। हाँ जी, बोलो क्या बोला अभी आपने? फर्स्ट ऑप्शन वाज लाइक कि फर्स्ट सॉफ्ट सेकंड को छोड़ दो, डिफ्यूज। ये अभी हमने जो लिखा है टू गिव सॉफ्ट लाइट, ये करेक्ट है या नहीं है? ऐसा था कुछ, क्या था? ऐसा था सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट विद एडजस्टेबल फोकस। यस सर। यूज्ड और एक लाइट, ऑप्शन था एक मिनट लिखने दो पहले, उसके बाद बोलो। टू गिव सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट विद एडजस्टेबल फोकस। फोकस। हाँ जी, अब बोलो जो आदमी बोल रहा था। टू गिव सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट विद एडजस्टेबल फोकस, एक ये हो गया। टू गिव लाइट टू ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स दूसरा हो गया। टू फोकस द लाइट ड्यूरिंग मूवमेंट तीसरा हो गया। चौथा बोलो। सर शायद कोई ऐसी कुछ ऑप्शन था जो की लाइट के जैसा साउंड कर रहा था, बट शायद किसी और को याद हो। उसमें की लाइट वर्ड था? नहीं, वो उसको सिग्निफाई कर रहा है, जैसे आपने अभी एक शुरुआत में बोला था ना हार्ड लाइट, तो वो हार्ड हार्ड लाइट, लाइट, हाँ। लेकिन वो कुछ और था उसी से मिलता जुलता। अगर किसी को याद हो तो मे बी वो इनपुट दे सकते हैं। सर आई गेस स्पॉटलाइट था, देखो because स्पॉटलाइट तो ये आ गया, टू फोकस द लाइट ड्यूरिंग द मूवमेंट जो होता है वो स्पॉटलाइट होती है, हाँ ठीक मैं है। वही सर, जैसे फिल लाइट को उन्होंने वो सॉफ्ट लाइट वाला बोल दिया, स्पॉटलाइट को ये फोकस मूवमेंट पे बोल दिया, ऐसे ही की लाइटिंग को उन्होंने किसी और शब्द में लिखा हुआ था एक एक सेंटेंस ऑप्शन बना। था कि क्लियर शार्प फोकस लाइट। दोबारा बोलो। क्लियर शार्प फोकस लाइट। क्लियर शार्प शार्प फोकस लाइट। फोकस लाइट। हाँ जी, मेरे हिसाब से जितनी मुझे अकल है, आंसर इसका चौथा होना चाहिए। हार्ड लाइट होती है एक तो शार्प हो गई, और फोकस रहती है एक पर्टिकुलर उसके अंदर, बट चक्कर यहां पे ये है कि टू गिव लाइट टू ए ग्रुप ऑफ एक्टर, तो कोई भी लाइट हो सकती है वो तो इसमें अगर ये करेक्ट तुमने ऑप्शन दे रखी है तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्लियर सेकंड शार्प ऑप्शन, फोकस लाइट। वो जो सेकंड वर्ड ऑप्शन। वहां पे एडजस्टेबल फोकस लिखा होता है ना, वो तो होता है इसके अंदर हार्ड और सॉफ्ट करने के लिए, बट यहां पे लिख दिया है टू गिव सॉफ्ट डिफ्यूज लाइट। वो डिफ्यूज लाइट नहीं होती है, रहती हार्ड ही है, उसका एरिया बढ़ जाता है, एरिया कम हो जाता है बस, बट रहती वो हार्ड ही है, डिफ्यूज नहीं होती है वो। इट स्प्रेड्स, it do not become diffuse, it still remain hard, but the area covered become larger by adjustable focus। पीछे बैक में वो फोकसिंग होता है उसका, उसको एडजस्ट करने से वो उसका एरिया कम और ज्यादा हो जाता है। अगर ये चार ऑप्शन है तो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए क्लियर शार्प फोकस्ड लाइट। सर एक और चीज थी, जैसे कि कुछ स्टेज का जो बैकग्राउंड होता है उसको वो ना दिखे ऐसे कर, उसलिए उसके बेटा लिए इस वो लाइट क्वेश्चन था। की बात हो रही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सर उसी मेरे वो मैं ऑप्शन बंटी, का बात इस कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या में एक ऑप्शन था ये बताओ। ऑप्शन था सर। चार ही ऑप्शन थे, पांचवा हाँ नहीं था वही वहां। सर, जैसे कि नहीं सर, चार ही ऑप्शन था उसमें। एक ऐसा था कि वो बैकग्राउंड का जो एक्टर का बैकग्राउंड जो स्टेज होता है उसको इसमें नहीं लाइट था, यूज होता है, ऐसा कुछ। इसमें नहीं होगा, इसमें यही रेलेवेंट लग रहे हैं जो बच्चों ने बोले अभी, जो तुम बोल रहे हो कुछ और बोल रहे हो। अगर इसका ऑप्शन सर ये वाला था भी स्टेज वाला, तो वो ग्रुप ऑफ एक्टर्स की जगह हो सकता है मे बी। हाँ, इसी में हो सकता है टू गिव ए लाइट टू ए ग्रुप ऑफ एक्टर्स, इसमें कुछ होगा, हो सकता है बस। शायद इसमें हो सकता है कि वो बैकग्राउंड छुपाने या कुछ मे बी जो वो बोल रहा है। बट एनीवे, अगर ये ऑप्शन थे तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन था क्लियर शार्प फोकस लाइट, तो फ्रेनल लाइट का ये ऑप्शन है। जिसने लिखा है 2.5 नंबर डाल लो अपनी झोली में, नहीं लिखा 2.5 माइनस कर लो। हाँ जी, सिनेमाटोग्राफी का क्वेश्चन है, तुमसे पूछ लिया, तुम्हारा हॉरोस्कोप खराब है। अब ऊपर आ जाइए, थोड़ा ऊपर पहुंचते पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन में घुसते हैं हम पहले, जो हमने छोड़ के आ गए थे। कहाँ था वो डिस्ट्रक्शन फिजिकल मूवमेंट, कौन, ये कौन सा, यही था ना वो क्वेश्चन 15वां।
15वें में थे ना हम कंफ्यूज थोड़े से, या पहले थे उससे? 15 में ही थी सर। I guess sir. 15वें में थे। हाँ जी, 15th एंड 16th 2 क्वेश्चन बनाए थे अब। हाँ, 2 क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें आ जाइए। वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज इन स्टिलनेस, नॉट स्पीकिंग इन ए ग्रुप सीन, बट ही इज सेंट्रल टू द ड्रामेटिक टेंशन। व्हाट डज द कैरेक्टर? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट वर्ड था वहां पे। एग्जैक्ट यही वर्ड था सर, इम्प्लिसिटी था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आओ आगे। मैं कंफ्यूज हो गया, उधर प्रामिया फेसिया ने कंफ्यूज कर दिया मुझे। तो इम्प्लिसिट टेक्निकल वर्ड है, हर आदमी इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक ये था या नहीं था। इज अ रेयरली यूज वर्ड। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, नो डिस्ट्रैक्शन बाय फिजिकल मूवमेंट, एक्टिव लिसनिंग विद सटल फेशियल एक्सप्रेशन, he should wait for his turn to deliver dialogue, he is reaching as if he is listening to the dialogue for the first time। सर चारों ऑप्शन यही थे उसमें तो ये नीचे का जो अड़ंगा है ये बेकार है सब। ठीक है जी। ये तो अनिर्बान थोड़ा सोचो इसमें क्या होना चाहिए हमारे साथ। वन अच्छा, सिंगल मल्टीपल था या वन सिंगल था, इसका ये भी बता दो जरा, लग गया तो। सिंगल 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 था, तो इसमें अनिर्बान सिंगल आंसर है, बच्चे बोल रहे हैं। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नंबर 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्टिव लिसनिंग विद सटल फेशियल एक्सप्रेशन। यस। ठीक है, चलिए। तो ये चारों के चारों अभी हमारे लिए रिडंडेंट है, बट देखते हैं अभी आगे। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसमें शायद ये गलती से हेल्प कर दे थोड़ा सा। अब सर ये 16th वाला आई एम नॉट श्योर, जो ये कोई बात conflict- नहीं, आपको पहले तो क्वेश्चन की बात करेंगे हम, उसके बाद ऑप्शन की बात करेंगे। 1 to 1 एक एक करके चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, घबराओ मत के ऐसा रुक जाओ। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ शोइंग इनर कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा करके कोई क्वेश्चन था दोस्तों। श्योर नहीं है सर। सर मैं भी श्योर नहीं हूँ। नॉट श्योर। नहीं हो तुम सब लोग श्योर, तो चलो इसको अभी रेड कर देते हैं। ये सब चीजें जो हैं, सॉरी, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे मेरे अपना कोडिंग वोडिंग चल रहा है ये सब। हाँ जी। तो अब हम थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं, इसे खटाखट खटाखट पता लग जाएगा। बाकी के क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन है, उनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया हमारा, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया। 13 के बाद अभी आ गया ये मेरा 14 आ गया। ठीक है जी। फिर मेरा 15वां क्वेश्चन, 14 के बाद, 13 के बाद, एक मिनट, 12, 13, 14, और उसके बाद हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर ये 15। ठीक है जी, 15 हो गया। और टेम्पो रिदम वाला भी एक क्वेश्चन था, आप सब लोगों ने कंफर्म किया है, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा 16। ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया मेरा 17। और ये पैसेज में घुसा मैं यहाँ पे, तो पैसेज में आ गया मेरा 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है जी। फ्रेनालाइज हो गया 23। सॉन्ग वाला मार्लिन ब्रांडो का है, सबों को पता है, 24। 25। इसमें जरा फटाफट अल्टरनेटिव बोल दो। साहिब वीवो गुलाम, बिमल मित्रा करेक्ट अल्टरनेटिव है। और कौन कौन से डायरेक्टर थे? आधा आधा गांव। आधा गांव राही इसी में मासूम था? रजा। वो तो है बेटा, बट इसी में था वो, ये मैं पूछ रहा हूँ। जी यस सर सर। था। मैंने पूछा भी था किसी बच्चे से, वहां पे उसने लिखा था कि ये, मैं यही पूछ रहा था कि कहाँ से आया ये राही मासूम, डॉक्टर राही मासूम रजा। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू के अंदर, तुम्हें याद आ रहा हो तो। यस सर। हाँ जी। अब तीसरा अल्टरनेटिव क्या था इसके अंदर? डायरेक्टर था, उसकी फिल्म थी, लिटरेचर का किताब क्वेश्चन था, कोई अवार्ड सर था। एक नाम था सर, यू आर अनंत मूर्ति। डॉक्टर, हाँ, यू आर आनंद मूर्ति, बड़ा आदमी है वो। साहित्य अकेडमी का प्रेसिडेंट रहा यू आर आनंद मूर्ति। उसकी कोई किताब का नाम रहा होगा फिर वहां पे। चलो चौथा मे बोल बी। दो, चौथा बोलो।
चलो, इसका ऑड वन आउट था क्वेश्चन या क्या क्वेश्चन था? क्या नहीं मैच सर, करते थे? मैच दी पेयर था सर। मैच मैच करके नीचे फिर क्या ABCD था या मल्टीपल था, क्या था मतलब? 1 का A, 2 का B ऐसे करके एक सिंगल ऑप्शन जिसमें चारों के मैच हैं, फिर दूसरा ऑप्शन जिसमें फिर से डिफरेंट पेयरिंग है। तो अगर किसी को साहिब बीबी गुलाम और बिमल मित्रा पता था तो बस उसी सिंगल करेक्ट से ही वो रूल आउट हो जाते हैं बाकी ऑप्शन। चलो, बहुत अच्छी बात है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ, गोदान बड़ा क्लियर कट है, ये आंसर जो है इसमें ये हो गया। अच्छा, मैं नंबर डाल लूं पहले, मैंने गड़बड़ हो जाएगा। 23, 24, 25 ये हो गया मेरा। मैच द फॉलोइंग 4 डायरेक्टर नहीं है इसका मतलब, ये मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है जी। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया 25। सर 26वां हो गया। हाँ जी, बोलिए। 23rd क्वेश्चन में ऑप्शन थे सर, किसमें ऑप्शन एक्टर्स थे? के। 23rd में हाँ, इसमें मार्लन ब्रांडोवाल के साथ ऑप्शन क्या क्या थे इसके अंदर? अल अल अल्पचिनो था पचीनो सर, एल रॉबर्ट पचिनो, डिनेरो था और जैक निकोलसन था। एल पचिनो था, जैक निकल्सन था, रॉबर्ट डिनेरो था सर। हाँ, और रॉबर्ट डिनरो था। चलिए, ये हो गया 24वां, 24 करेक्ट हो गया, 25वां करेक्ट हो गया मेरा, 26 गोदान करेक्ट हो गया, और 27वां ट्रेडिशनल सबों को पता है इसका आंसर। 2 नरेटर होते हैं, ये भी बड़ा सिंपल सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब टेढ़ा क्वेश्चन आता है 27 के बाद, पीटर ब्रूक। पीटर ब्रूक के अल्टरनेटिव करेक्टली बताओ दोस्तों। पीटर ब्रूक में महाभारत, पीटर ब्रूक का जो महाभारत है मैंने देखी है, 8 घंटे की फिल्म है, उसमें कृष्णा का कैरेक्टर एक ब्लैक आदमी ने प्ले किया है। ऑप्शन क्या क्या थे वो बताओ। सर एक ऑप्शन यही था, ऑमनिसेंट वॉइस थी मतलब एक तरीके से। ऑमनेसेंट वर्ड एक था या 2 थे वहां पर? वॉइस ऐसे कुछ करके था। ऑमनेसेंट के आगे कुछ लिखा हुआ था? हाँ सर, लिखा हुआ था। ठीक है, क्या था? This कोई और आदमी option, क्या आ रहा है? this option was Krishna was the omniscient narrator. ओमनिशेंट नरेटर। हाँ Krishna सर। was the omniscient narrator. ठीक है, अब बोलो आगे दूसरा। एक कृष्णा वॉज पॉलिटिकल गॉड। करके था सर, कुछ पॉलिटिकल करके। एक और था सर ऑप्शन, इसमें लिखा था नॉट अ गॉड लाइक फिगर। हाँ, और वो ये रहा, वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ह्यूमन लाइक फिगर हु एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ चॉइस रादर देन ए डिवाइन गॉड लाइक फिगर, ऐसा कुछ हाँ, था। ये एक ऑप्शन, हाँ सर था, ऑप्शन यही था। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका एक ही करेक्ट आंसर था या 2-3 थे? एक ही करेक्ट आंसर। यही है भाई, मार्क कर लो। बहुत खास चीज है पीटर ब्रूक के इस वाले प्ले के अंदर, प्ले मतलब फिल्म के अंदर, कि वो जो कैरेक्टर है वो चॉइस के बेस पे काम कर रहा है, ना कि वो लगता डिवाइन नहीं लगता, उसको देख के कहीं से लगता नहीं है कृष्ण है ये। और बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उस बात को लेके कि इस आदमी को तुम पकड़ लाए हो, इंडियन लोग तो वैसे ही नहीं मानेंगे। तो वो थ्योरी था, उसके ऊपर उसका डिस्कशन हुआ था काफी जो है, कि वी वांटेड ए मैन हु हैज ए रीजनिंग लॉजिक रादर देन हु इज ए सुपर मैजिकल कैरेक्टर, डिवाइन कैरेक्टर। तो ये पीटर ब्रूक का अपना वो था। और क्या क्या अल्टरनेटिव थे वो जरा बोल दो। डिलेमा से कनेक्टेड कुछ था? नो सर। सर समथिंग वाज पॉलिटिकल करेक्ट, कुछ ऐसा था। हाँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट करके ऐसा कुछ करके था सर। हाँ। चलिए, वो तो जर्नल है उसके, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट तो है। तो वॉइस ओवर टाइप का कुछ था? हाँ सर यस सर, था। चलो, वॉइस वॉइस ओवर टाइप हो गया, ओमनी सेंट नरेटर हो गया। डिलेमा विलेमा कुछ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 ही अल्टरनेटिव होंगे। तो चौथे में ह्यूमन, वो जो डिवाइन वाला जो चक्कर है, ह्यूमनली फिगर वाला जो अल्टरनेटिव था। ठीक है जी। तो अनिर्बान, ये चौथा जो है ब्रूक का करेक्ट थ्योरी, ये चौथे वाला जो हमारा इसमें वो जो ऑप्शन है। यस सर, यस यस। ठीक है, तो इसमें हमने ये करेक्ट कर लिया, ह्यूमन लाइक फिगर who embodies the principle of choice rather than a divine figure। ठीक है जी। अब रह गया ये ABCD वाला बड़ा ऊट पटांग का क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, हम काउंटिंग कर लेते हैं क्वेश्चंस की पहले। 23, 24, 25, 26 गोदान हो गया, 27 ट्रेडिशनल फोक हो गया। ठीक है जी। 28 पीटर ब्रूक हो गया। 29 ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस मतलब लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये।
मैंने अब ये जब तक अगर क्वेश्चन फॉर्मुलेट ठीक से नहीं होगा ये इसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है जी, सर तो मैं मुझे इसको क्वेश्चन तो याद है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन जो थी हाँ वो ये थी कि उन्होंने शुरुआत में ये बोला था कि ग्रुप ऑफ एक्टर्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द ऑडियंस। देखो, ग्रुप ऑफ एक्टर को फेसिंग द व्हाट, फेसिंग द सेंटर या फेसिंग फेसिंग द द ऑडियंस? ऑडियंस सर, वहीं पे दिक्कत होती है कि फिर वो मिरर जैसा कंसेप्ट आ जाता है कि लेफ्ट और राइट, क्योंकि एंड नहीं में नहीं, क्वेश्चन पहले पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फेसिंग द ऑडियंस बोला है या फेसिंग द सेंटर? ऑडियंस हाँ ऑडियंस। जी, फेसिंग द फेसिंग ऑडियंस बोला है सर। बस तो प्रॉब्लम खत्म है, बात खत्म हो गई। कॉमन ये है, फिर लोग उसको सब निकाल लोगे, दिमाग लगाओगे, लाइन लिखो, हेलो ABCD लिखो, उसमें निकल आएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन ठीक से याद है तो, अगर ठीक से क्वेश्चन सर याद सर नहीं है तो इसको नहीं कर पाओगे। सर दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, सर मैं एक ये सेकंड बोलूं क्या? बोलिए। हाँ, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि इसका एक ही करेक्ट आंसर था ना? यस यस हाँ सर। सर। सर, हाँ सर। हाँ, इसके एक ही करेक्ट आंसर था जो ई है, और वो हाँ फेसिंग द ऑडियंस है। उसको लेफ्ट राइट से सर आंसर में कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन हो रहा है उससे आंसर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आंसर इज ऑलवेज द सेम, लेफ्ट करिए राइट करिए। ये क्वेश्चन जो है 7 एक्टर वाला, ABCDEF जो है, ABCDEF जो है, ABCDF G जो है, सिटिंग अराउंड इन ए सर्कल नहीं है, एंड सिटिंग फेसिंग इन द ऑडियंस। सिटिंग इन ए सिंगल लाइन फेसिंग द ऑडियंस सर, सर्कल है ही नहीं। हाँ और बोला था कि डी इज इन द सेंटर। सर एच तक था, ABCDEFG चलो, H। ABEGH, चलिए ठीक है जी। H तक सर और था। सर सिटिंग, कैन आई से समथिंग? बोलिए। सर ये सर वाला क्वेश्चन एच वो तक आई नहीं थिंक था, सबके जी सेट तक में ही वो था। अलग था। ये वाला क्वेश्चन सबों के सेट में नहीं अलग था। है सर, हु इज यस सर। इंक्लूडिंग एच, इट्स ओनली अप टू जी। सर 7 सर जी एक्टर्स तक होंगे था, ना? सर डी की हम जो नहीं सर, पोजीशन जी थी तक वो ही था सेंटर सर। में थी। थे। सर जो डी की पोजीशन थी वो सेंटर में थी और जी तक ही था ये सर। चलिए, ABCDEFGH था, जी तक था, और ये फेसिंग द ऑडियंस है सारे के सारे। ठीक है जी। अब ये जो आप यस जो सर। बोल रहे हो, डी इज इन द थर्ड टू लेफ्ट और ये सब जो है, तो अभी क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें निर्माण ने बोला कि उसमें लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ है। सबके लिए सर ये क्वेश्चन अलग था, क्योंकि हमारे में एच तक यस था, सर। और फिर उसमें डी सेंटर में है, ए लेफ्ट पे है, सी राइट चलो पे कोई है। बात नहीं, ये डिफरेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, सो वी कैन नॉट से एग्जैक्टली। फॉर एवरीवन। ठीक है जी। तो दोस्तों मेरे जो हो गए, ये जो चक्करबाजी है, वो एक बच्चा बोल भी रहा था कि कुछ 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 वो अलग सेट आया है, ये आया वो है। तो एक एक मिनट, क्वेश्चन छूटा है या फिर सारे हुए? ठीक है जी, अभी रुक जाइए। अभी मेरे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए मैं वो काउंट कर लूँ बस। एक बार दोबारा से 21। फटाफट काउंट करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे दो, रुक जाओ। एक मतावरी हो गया, लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांस हो गया, 2 मेन फंडामेंटल हो गया, नाट्य शास्त्र, 3 नंबर 4 नंबर ये बर्तोल्ट ब्रेथ हो गया, 5वां मैजिक इफ हो गया, 6ठा हो गया अभिनय, 7वां हो गया मराठी एक्टर, 8वां हो गया काबुकी, 9वां हो गया मैच द फॉलोइंग हो गया, 10वां हो गया माइकल चेकॉव थ्योरी सपोर्ट्स, वॉइस ट्रेनिंग का हो गया 11वां, 12वां हो गया शेक्सपियर का डायलॉग। अनिर्बान, वेरी सरप्राइजिंगली एंड स्ट्रेंजली, डॉक्टर नीलम मानसिंह चौधरी ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें 8 अलग अलग प्लेस के स्टेटमेंट थे ऐसे ही वाले। उसके अंदर मैंने नीचे लिखा था वहां पे कि दिस कुड फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन इन एनी MCQ वे ऑफ एक्टिंग क्वेश्चन, और वो जो है यहाँ पे आ गया। वो कमेंट अभी जाके देखोगे तुम, उस तारीख का जब मैंने डाला हुआ है डॉक्टर नीलम सिंह चौधरी के उस पे, अभी भी तुम्हें मिल जाए। इट इज सच ए सरप्राइज कॉइंसिडेंस। उसमें 8 स्टेटमेंट उन्होंने कहीं से कोई JPEG इमेज डाली थी, तो मैंने उस पर ये रिवर्ट किया था, और उससे लेके मैंने वो क्वेश्चन बनाए भी थे अपने बच्चों के लिए। पता नहीं वो मेरी खोपड़ी में कब कहाँ इधर उधर हो गया, वो मैं उनको दे नहीं पाया है, पता नहीं क्या हुआ, तो वही आ गया देखो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को लगा कि यार ये तो क्वेश्चन बन सकता है। यस यस यस, डेफिनेटली। समझे क्या नहीं? अभी भी कोई जाके देखेगा तो उस टाइमलाइन में तुम्हें मिल जाएगा वो मेरा स्टेटमेंट वहां पे, क्योंकि समटाइम आई गेट द फील कि अरे ये तो क्वेश्चन बन गया हमारा। हाँ जी, 12 ये हो गया। 13 हाउ डज एन एक्टर पोर्ट्रेट सबटेक्स्ट वाला हो गया। 13 14 वन ऑफ द कैरेक्टर ऑन द प्ले स्टिलनेस हो गया। 15वां शिफ्ट फ्रॉम सिनिकल टू ये हो गया। 16वां टेम्पो रिदम अकॉर्डिंग टू स्टेनिस्लावस्की किया गया। 17वां जॉनर ऑफ द मूवी आ गया। उसके बाद आगे 18 परसेप्शन ऑफ द मिशेल, 19 20 21 और 22। 23 आ गया फ्रेनल लाइट। 24 आ गया सॉन्ग ऑफ बायोग्राफी।
25 आ गया मैच द फॉलोइंग, जिसमें 4 क्वेश्चन घुसेड़ दिए इन लोगों ने। 26 गोदान आ गया लिटरेचर। ट्रेडिशनल ओडिशा आ गया 27। 28 पीटर ब्रूक आ गया। 29 अगर ये है मेरा, तो एक क्वेश्चन रह रहा है दोस्तों। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो जरा कोई सोच के बता दे, बुद्धिमान आदमी तो। सर मतवारिणी करके एक क्वेश्चन था नाट्यशास्त्र का। बेटा मतवारणी वो डिस्कस पहले है, सबसे पहला एक- क्वेश्चन वही है मेरा। ये रहा मतवारणी अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी अपन ने छोड़ दिया है इनर कॉन्फ्लिक्ट, एंड शायद कोई कह रहा था कि वो श्योर है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट में लिविंग कोई ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। हाँ जी, लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी हो सर्कमस्टांसेस गया, किसका हो ये चुका है। होगा? तो हमने वो तो लिया है ना, लिविंग इमेजिनरी अंडर लिविंग। शायद हाईलाइट किया है ना सर आपने, शायद उससे मिलता जुलता शायद कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि वही एक चीज रह गई है। द मेंटोर, ये वो सब हो गया, ऊपर ही होगा वो। अगर होगा तो उसको रेड वाले में देख लेते हैं, अगर उसमें मिल जाएगा तो। हमने रेड जो मार्क किया है। ये जो व्हाट इज इनर द बेस्ट, जो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर होगा तो वो यही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ शोइंग इनर कॉन्फ्लिक्ट? इनर कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें, याद आ रहा है किसी को? सर उसपे यही था, लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, और उसके नीचे ऑप्शंस थे स्टेला अच्छा एडलर। एक मिनट क्या क्वेश्चन था तुम्हारे हिसाब से, बोलो। हो चुका है ये लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी एक सर्कमस्टांसेस। आदमी बोलो, लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। अभी इसके अंदर क्या ऑप्शन थी, ऑप्शन क्या क्या थी? सर एक था स्टेला एडलर, हो चुका है सर। नहीं, वो सैमफोर्ड नहीं हुआ है, माइजनर। वो नहीं हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, वो मैंने पूछा था, उसमें 4 लोगों के नाम लिखे हुए थे नीचे नीचे। वो मैं बता देता हूं आपको, अगर वो हो चुका है तो ये रहा। मैजिक इफ के अंदर है वो। मैजिक इफ नहीं सर, कंसेप्ट इज बाय दो माइजनर। नंबर सर सेकंड मैजिक क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन। लिविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांस हो चुका है भाई, हो गया है, दोबारा नहीं आएगा। ये तो क्वेश्चन केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बचा है जो हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं इसको, और वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, और कुछ नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर अभी तक तो। यस सर, एक क्वेश्चन था हाउ टू प्रेजेंट इनर कॉन्फ्लिक्ट। रुक जाओ क्वेश्चन नंबर 30 कर देता हूं इसको। हाउ टू बोलो। दिस इज व्हाट सर, लाइक हाउ टू शो द इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड लाइक उसके ही कुछ ऑप्शंस थे। डिस्प्ले द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ कैरेक्टर टू द ऑडियंस, ऐसा कुछ करके हो सकता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैरेक्टर टू ऑडियंस, हाउ टू Yeah, like Audience. what is the best way to show the inner conflict of हाँ, एक ही बात है, बेस्ट वे शो वे एक ही बात है। व्हाट इज द हाउ टू शो, या हाउ टू शो, और व्हाट इज द बेस्ट वे। चलो ये कर लेते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे show the inner conflict of the टू character? शो द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैरेक्टर टू द ऑडियंस। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन था सर, पॉज लेके करेगा वो इनर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक मिनट रुक जाओ। पहले एक चीज सेट होती है, फिर दूसरी चीज सेट होती है। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक को पहले सेट करने दो। व्हाट इज द बेस्ट वे टू शो द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैरेक्टर टू ऑडियंस। अब इसके अल्टरनेटिव बोलिए। यहां पे कुछ अल्टरनेटिव लिखे, पहले ये बताओ थे कि नहीं। टू इंक्रीज इमोशनल टेंशन। No sir, this is not the ये था स्टिलनेस ऑलवेज कन्वे द इमोशन। चलिए, ये नहीं था मेरा। इंक्रीज ड्रामेटिक टेंशन फॉर द ऑडियंस। एक लड़का था जो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि ये था सर उसके अंदर। कौन आदमी है वो बताओ जरा, दोबारा आ जाओ ऊपर। इंक्रीज ड्रामेटिक टेंशन फॉर द ऑडियंस, ऐसे कुछ करके था, क्योंकि कैरेक्टर टू द ऑडियंस की बात हो रही है, तो फॉर द ऑडियंस वाला अल्टरनेटिव करेक्ट बनता है यहाँ पर। सर बी वाला जो था वो था। तो एक तो ये हो गया हमारा पहला। चलो सर एक और था, उसमें था रैपिड मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एक करके था। मिनट, एक ये हो गया मेरा। इंक्रीज ड्रामेटिक टेंशन फॉर द ऑडियंस, ये हो गया। अब आप बोलो, कोई मे वाला ऑप्शन था कुछ इसमें, इन बिटवीन कुछ मे आ रहा हो, छोड़ देते हैं। हाँ जी, दूसरा बोलिए क्या था इसमें अंदाजा। सर मतलब उसमें ये था कि रैपिड बॉडी मूवमेंट्स करके तुम दिखा सकते हो। रैपिड बॉडी मूवमेंट। हाँ,
ठीक है, तीसरा बोलो, इनर करेक्टर नॉट ऑलवेज रिवील बाय स्पीच, ऐसा कुछ था? नहीं सर, ऐसा तो इनर कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है ये स्टिलनेस वाला जरूर था शायद। स्टिलनेस का हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, स्टिलनेस ऑलवेज कन्वे द इमोशन। ये हाँ था सर, स्टिलनेस वाला था सर। चलो अच्छी बात है, 3 हो गया, आप चौथे पे आ जाओ। हाँ, किला जीत लिया है तुमने 75%, 25% रह गए। इसका एक आंसर था या 2-3 थे? सर सिर्फ एक सिंगल था सर। सिंगल था, कोई बात नहीं, चलो एक और बोलो। मूवमेंट्स की जगह सर रैपिड फिजिकल एक्शंस या ऐसा कुछ करके था, बट इट मींस सेम। चलो, फोर्थ अगर अनिर्बान, अगर ये 3 में तुम्हें दिखाई दे रहा है कोई करेक्ट वाला आंसर हमें, तो चौथे को मारो गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता। What is the best way to show the inner conflict of the character to the audience? Increase dramatic tension for the audience, rapid body movement, stillness, always convey the emotion. सर एक डाउट है, आई थिंक बोलो। दूसरे लोग रिलेट करें। इन्फ्लिक्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर में टू द ऑडियंस करके क्वेश्चन में शायद नहीं था। अगर हम टू द ऑडियंस और क्वेश्चन में डालेंगे देन सारे आंसर्स भी हमें रिलेट लगेंगे क्वेश्चन से। तो ये चलो निकाल देते हैं। द बेस्ट वे टू शो द इनर कॉन्फ्लिक्ट किसी को तो दिखाओगे, दीवाल को तो नहीं दिखाओगे ना, बट ऑडियंस को दिखाओगे। चाहे टेलीविजन सीरियल हो, फिल्म हो, थिएटर हो, दिखाओगे तो ऑडियंस को। कॉमन सेंस लगाओ। यस सर, बट नहीं भी लिखते हैं तो इसका मतलब वही है, ऑडियंस के लिए। अगर आप नहीं भी लिखते हैं उतना, तो इसका मतलब ऑडियंस को ही दिखा रहे हो, दीवाल को तो दिखाओगे नहीं, कार करेक्ट को सर। तो नहीं दिखाओगे, अपनी पेड़ को तो जाके नहीं दिखाओगे इनर कॉन्फ्लिक्ट, तो होगी ऑडियंस के लिए ही वो। द बेस्ट वे टू शो द इनर कॉन्फ्लिक्ट, चाहे उसमें लिखो चाहे ना, मतलब ये है ऑडियंस के लिए ही। एक्टर की बात हो रही है ना, बात करता हूँ। प्लॉट वगैरह के थ्रू भी सोच सकता है आदमी, इनर हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट कैरेक्टर आएगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू शो द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑफ ए कैरेक्टर। इनर कॉन्फ्लिक्ट तो स्टोरी के प्लॉट में भी हो सकता है एक, तो इधर पे इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर तो मेंशन था। हाँ, कैरेक्टर हो सकता है, ऑडियंस नहीं था, मुझे इतना कंफर्म। चलो ठीक है, कैरेक्टर की वही बात होगी ना, देखो एक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पे कैरेक्टर तो एक्टर ही होता है ना वो तो। सर इसमें था इसमें कि कोई डायलॉग डायलॉग, था? हाँ सर, मतलब ये था कि डायलॉग के जरिए कर सकता है क्या, मतलब ऐसा कुछ था था सर, लाउड डायलॉग्स या कुछ ऐसा कुछ। डायलॉग्स का कुछ। ठीक है, अब अनिर्बान, ऐसे चौथे में कंफ्यूजन है बच्चों को, 3 में से आपके हिसाब से कौन सा लग रहा है आपको? नंबर 1 सर। हाँ जी, नंबर 1। नंबर 1। ये पहले इंक्रीज इमोशनल टेंशन को उड़ा देते हैं यहाँ से। इंक्रीज ड्रामेटिक टेंशन फॉर द ऑडियंस, द बेस्ट वे टू शो द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैरेक्टर इज टू इंक्रीज ड्रामेटिक टेंशन फॉर द ऑडियंस। ठीक है जी, तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा 30 हो गए। फिर उसको आप लाउड डायलॉग्स कर दीजिए, और शायद ऐसा कुछ जी, डायलॉग्स वाया लाउड डायलॉग्स, मतलब तेज तेज बोलेगा वो कैरेक्टर तो ऐसा लगेगा कि। चलो, तो भाई ये आज का हमारा 1 घंटा में लेके चल रहा था, ये 2 घंटा हो गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड नो नाउ वेयर एग्जैक्टली यू गाइज स्टैंड। ओके, so I will share this video with you guys, or not the video, because in video we were discussing and all that, so that doesn't make a sense. I would share this PDF file with you people, okay, or maybe I would make another video out of it for the everybody to who are not even our student, for the benefit, so that they will also know कि क्या है क्या नहीं है। तो जो भी तरीका होगा, कल का टाइम मुझे दे दो, आई विल फिगर इट आउट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। तो उसको अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस पूरे को दोबारा से पढ़ दूंगा मैं, ठीक है। और वो 2 घंटा है तो 2 घंटे का वीडियो नहीं बनेगा, वो कुल मिला के 30 मिनट के 30 क्वेश्चन है तो 30 मिनट हो जाएंगे। अब क्विकली एक वो जो लास्ट में वो है, उसमें कुछ डिस्कशन है नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े सिंपल सिंपल से हैं। चूज वन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम रामायण, महाभारत और एनी शेक्सपियर प्ले एंड राइट अबाउट देयर ट्रायड कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रेफर द कैरेक्टर पोर्ट्रेट टू। ये हमने उस टाइम में जब वो डाउट क्लियरिंग सेशन में कुछ जो 2-3 बच्चे रहे होंगे, उस टाइम में मैंने बोला था कि रामायण महाभारत या शेक्सपियर के किसी के प्ले के कैरेक्टर को पूछ के, कैरेक्टर को लेके पूछा जा सकता है उसका कैरेक्टराइजेशन। तो ये वही 3 कीवर्ड है, उसको इन्होंने घुमा फिरा के अपने तरीके से पूछ डाला है। रसा थ्योरी सबों को पता ही है, एनालाइज द परफॉर्मेंस सबों को पता है, और ये डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग फॉर थिएटर और सिनेमा, सदियों से क्वेश्चन और डिबेट चल रही है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी,
तो मेजर जो पंगा था, हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। यहाँ पर जो लिखा है वो थोड़ा सा उलझा हुआ लिखा हुआ है। वहां कहाँ पे पर? बड़ा डिस्क्रिप्शन में? मतलब, हाँ जो आपने डिस्क्रिप्टिव में फोर्थ क्वेश्चन देखिए ना आप एक बारी, ठीक है। उसकी लैंग्वेज काफी यहाँ पे तो उलझी हुई है, लेकिन वहां पे बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ था कि सिनेमा एक्टिंग, टेलीविजन एक्टिंग। बेसिकली डिफरेंस बिटवीन थिएटर वर्सेस सिनेमा एक्टिंग था ना? नहीं नहीं सर, वहां पे 3 चीजों को कंपेयर करना था। ठीक है, कोई बात नहीं। कैमरा एक्टिंग हो गई, वो ठीक है, वो भी क्लियर है। कैमरा एक्टिंग हो गई, मतलब सिनेमा एक्टिंग हो गई, थिएटर सिनेमा, एक्टिंग हो गई और टीवी की एक्टिंग हो गई। ठीक है, चलो वो भी है। तीन तीन टाइप की एक्टिंग को कंपेयर करना है, वो करेक्ट है। और फिर वहां पे ये था कि क्या डिफरेंसेस आते हैं जब एक एक्टर इन तीनों मीडियम्स में एक्ट करता है। तो बेटा वही तो हो गया ना कि डिफरेंस बिटवीन 3 मीडियम। बात खत्म। ओके सर। व्हाट इज द डिफरेंस फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म इन 3 मीडियम्स? करेक्ट। अप्रोच में सर, हाँ ठीक है, ओके फाइन। एक्टर के लिए अलग अलग है ना, होता सिनेमाटोग्राफर के भी है, वह लॉन्ग शॉट होता है या लॉन्ग शॉट नहीं होता, वो टेक्निकल चीजें हैं। एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है कि एज एन एक्टर 3 मीडियम में मैं काम कर रहा हूं, तो वो क्या होगा? राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कैमरा फॉर सिनेमा एक्टिंग होना चाहिए इसमें, फॉर लार्ज स्क्रीन, फॉर सिनेमा, सिनेमा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग एंड टीवी एक्टिंग। ठीक है जी, तो क्लियर आ गया आपका पॉइंट जो है, 3 टाइप की एक्टिंग में क्या क्या फर्क है और जो होता भी है। ठीक है जी। Okay, Nirvan, so we are done for today. And since yeah, please. अभी के हिसाब से आपको, आप अगर कट ऑफ का एक वो बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स का कितना जा सकता है? देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं Objective- तुम्हें हार्ट अटैक नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें नींद स्लीपलेस नाइट नहीं देना चाहता। मुझे रात को सोचने दो, अपना कैलकुलेशन करने दो, उसके हिसाब से मैं फिर बता पाऊंगा। अभी मैं बोल दूंगा वैसे ही रैंडमली, क्योंकि तुमने पूछ लिया है, तो तुम सब लोग जो है रात को सो नहीं पाओगे। मैं नहीं चाहता सर, हूँ आराम से सो जाओ। ठीक है, मेरा कल जो काम था वो मैंने आज खत्म कर दिया। क्वेश्चन 300 रुपए लेने का नहीं है, और क्वेश्चन 10,000 और 15,000 रुपए लेने का नहीं है। क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं थे, सब लोगों ने वहां पे ग्रुप में डाला है। जो 300 रुपए वाला ग्रुप है वो, और जो हमारा अपने बच्चों का ग्रुप है जो रेगुलर हमारे साथ इंटरेक्टिव क्लास में, आई वॉज नॉट श्योर डिस्पाइट द फैक्ट मैनी पीपल रोड विद मेमोरीज, वेरी गुड मेमोरीज। मैं शायद इतना सब नहीं लिख पाता, बट आप लोगों ने हिम्मत करके जुटा जुटू के कुछ 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 लिख लिया। अब डिस्कशन हो गया, और डिस्कशन में क्लियर हो गया कि क्या क्या ऑप्शन होनी चाहिए थी। अब मैं इसका एक आधे घंटे का वीडियो दोबारा से तरीके से बना के आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सर ठीक है वही जी? मैं बोल रहा हूँ कि इन द एंड ऑफ द वीडियो जब आप वो वीडियो डालेंगे तो कंक्लूजन में बस अगर ब्रीफ में आप एक बार कट ऑफ के बारे में कुछ बता सकें कि उसके बारे में देखो क्या है। अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूं, 1 मिनट में पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं।